Hello, my lovely children. Welcome back to my YouTube channel. Like I promised, we are back with the part 2 of breathing exchange of gases practice question, so you can dive right into it. Next question, interesting question. 1 second. 1 second, there you go. So, batao. Start reading the question the minute it pops up on your screen. Question 26. A person breathing normally at rest takes in and expels out half a liter of air during each respiratory cycle. This is called as, देखो एक person है, he is breathing normally, normally सांस लेता है, he is taking in air अंदर ले भी रहा है, and he is giving out air also. He is expelling half a liter of air. ठीक है, this is called as what? ठीक है, this is called as what? 1 second. Once again. Alright, I hope this is clear to everybody. Let's discuss question number 26 now. Question number 26 बोलता है, a person breathing normally at rest takes in and expels approximately half a liter of air during each respiratory cycle. This is called A. Inspiratory reserve volume, B. Tidal volume, C. Expiratory reserve volume, or D. Vital capacity. What do you think, बच्चे? ठीक है, एक इंसान है नॉर्मली रेस्ट पे है, मतलब ऐसे कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहा, ठीक है, वो नॉर्मली कुछ एयर को इनहेल कर रहा है और कुछ एयर को एक्सेल कर रहा है. यहाँ पे कितना दे रखा है उसकी वॉल्यूम? हाफ अ लीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 500 ml. So this the volume of air that you inhale and exhale normally, that's actually referred to as vital capacity. ठीक है, so option number D becomes the correct answer here. I hope this is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 27, right? Question number 27 बच्चे क्या बोलता है? Question. Why have I take vital? That's tidal volume, option number B. I'm sorry. If you look at the next question is question number 27, and here's what it says. Question number 27 बोलता है, which one of the following statements is incorrect? A. The principle of countercurrent flow facilitates efficient respiration in gills of fish. B. The residual air in lungs slightly decrease the efficiency of respiration in mammals. C. The presence of non-respiratory air sacs increases the efficiency of respiration in birds. Or D. In insects, circulating body fluids serve to distribute tissue. Once again. अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 27 की, क्वेश्चन नंबर 27 says which one of the following statements is incorrect. You have to find the incorrect statement. You have to spot the incorrect statement. A. The principle of countercurrent flow facilitates efficient respiration in gills of fishes. B. The residual air in lungs slightly decrease the efficiency of respiration in mammals. C. The presence of non-respiratory air sacs increases the efficiency of respiration in birds. Or D. In insects, circulating body fluids serve to distribute oxygen to tissues. What do you think? ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला, the principle of countercurrent flow facilitates efficient respiration in gills of fishes. This is an absolutely correct statement. ये करेक्ट है. फिशेज में भी आप देखोगे बच्चे, फिशेज में भी एक्चुअली जो फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ एयर वर्सेस दैट ऑफ द ब्लड, राइट, इट्स इन एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, और जो काउंटर करंट फ्लो है, ऑफ कोर्स इसकी डिटेल्स में जाने की ऐसे जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि because it will literally like take away at least a minimum of 12 to 13 minutes for its legit explanation. It's a rather long concept. Okay, and I'm not I would not say a question from this line has ever been repeated then, which is why I tell you, just keep one thing in mind कि जो counter current flow होता है, मतलब एयर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है, ब्लड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं मदद करता है फिशेस को इन रेस्पिरेशन, राइट. Residual air in lungs slightly decreases the efficiency of respiration in mammals. This is also true. हम सबको पता है हमारे lungs में कुछ volume of air होती है which is always present, right? This residual volume of air, the volume of air which is always present in the lungs even after forceful expiration, ये जो residual volume है कहीं ना कहीं ये decrease तो करती है efficiency को, because कुछ जगह तो घेरी हुई है ना. ठीक है, ये भी ठीक है. The presence of non-respiratory air sacs increases the efficiency of respiration in birds. That's true. Birds में हमारे पास non-respiratory air sacs होते हैं, birds में हमारे पास है non-respiratory air sacs जो मदद करते हैं in increasing the efficiency of respiration. Even this is correct. But if you look at the fourth statement, in insects, circulating body fluids serve to distribute oxygen to tissue. Insects में हम एक ही उठा लो, कॉकरोच के क्लास हम सब ने अटेंड कर रखा है, राइट. कॉकरोच की बच्चे अगर मैं बात करूँ, कॉकरोच में जो सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड है जो कि हीमोलिम्फ, वहाँ पे क्लियरली हीमोलिम्फ जो है, इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजन टू टिश्यूज, राइट. इट्स बीइंग डम्प्ड इनटू एम्प्टी स्पेसेस कॉल्ड साइनसेस और हीमोसील, बट इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग टिश्यूज टू ऑक्सीजन, राइट. इट्स नॉट. 1 second.
but it's not distributing oxygen to tissues, right? So I hope that makes perfect sense, and option number D becomes the correct answer here. Now let's move on to the next question. The next question is question number 28. Question number 28 says it's about respiratory volumes and capacities. The question says given below are 4 respiratory capacities and their respiratory volumes. You have to select the correct matched pair. नीचे 4 respiratory capacities और उनकी 4 volumes दे रखे हैं. You have to match the answer accordingly. Respiratory volumes and capacities and volume of air. अगर मैं बात करूँ टाइडल वॉल्यूम की, टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml, दैट्स राइट. अगर मैं बात करूँ वाइटल कैपेसिटी की, ठीक है, सो कैन यू टेल मी वाइटल कैपेसिटी कितना होता है? ठीक है, मतलब कौन कौन से करेक्ट है, राइट? बेसिकली यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर. सो टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वी कैन पुट अ टिक देयर. ठीक है, वाइटल कैपेसिटी होती है 2500 ml. दिस इज इनकरेक्ट. दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज बच्चे, अगर मुझे वाइटल कैपेसिटी को डिफाइन करना हो वंस एंड फॉर ऑल, we are all aware what exactly is vital capacity. Vital capacity क्या होता है? Vital capacity is basically, if I were to define it, it is the maximum volume of air that you can exhale. The maximum volume of air that you can exhale after a forceful inspiration, right? So for example, let's say, अगर मैं इसको lungs को ऐसे draw करूँ, and if let's say, I divided it into 4 portions. Residual volume is always present in the lungs. Expiratory reserve volume जो होती है वो हमेशा lungs में present होती है. आप उसे exhale नहीं कर रहे, that's a choice, right? For example, let's say अगर मैं चाहूँ अभी, तो अगर मैं फोर्स्ड एक्सपिरेशन करना चाहूँ, फोर्सफुली एक्सपायर करना चाहूँ, आई कैन डू इट. यू कैन ऑल कैन ट्राई इट आउट विद मी. ठीक है, सो यू कैन फोर्सफुली एक्सेल आउट है. अब इस फोर्सफुली एक्सेल करने के लिए आपको फोर्सफुली इनहेल तो नहीं करना पड़ा ना पहले. मतलब कहीं ना कहीं ये जो एयर थी, ये वॉल्यूम ऑफ एयर कहीं ना कहीं लंग्स में प्रेजेंट थी, आप उसे एक्सपायर नहीं कर रहे हो, दैट्स योर चॉइस, है. तो रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स. ठीक है, अब क्या बोला? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू कैन एक्सेल आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन. तो जब आप फोर्सफुली इंस्पायर करते हो, नॉर्मली इंस्पायर करते हो, टाइडल वॉल्यूम इनहेल कर रहे हो. बट जब आप फोर्सफुली इनहेल कर रहे हो, तो आप इंस्पिरेटरी रिजर्व एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर भी इनहेल कर रहे हो. ठीक है, अब फोर्सफुली इनहेल करने के बाद, ही फोर्सफुली आपने इनहेल कर लिया, इसके बाद आप टोटल कितना एक्सेल कर सकते हो? तो देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सेल कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम एक्सेल कर सकते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सेल कर सकते हो. रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, इट्स द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. इसको एक्सेल आउट नहीं कर सकते. ठीक है, सो वाइटल कैपेसिटी बेसिकली इनकम्पासेस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, right? So if you add up the three and if you try and make sense out of it, inspiratory reserve volume, tidal volume plus expiratory reserve volume का अगर आप ऐड करोगे, तो सी tidal volume बच्चे कितना होता है? tidal volume is basically 500 ml. tidal volume कितना होता है? 500 ml. अगर मैं बात करूँ inspiratory reserve volume की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 से 3000 ml, लाइक 2500 to 3000 ml, राइट? एंड देन इफ यू टॉक अबाउट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बच्चे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, दैट इज 1000 से 1100 ml. 1000 से 1100 ml. 1000 से 1100 ml होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इफ़ यू कुड ऐड इट अप, ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml ही होता है दोनों साइड पे. अगर आप इसकी पूरी रेंज डिफाइन करने की कोशिश करो, सो इट्स रिलेटिवली ईजी इफ यू ट्राई एंड डू इट. ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 550 कैरी लगा 1, यहाँ ये 4000 ऑन दिस साइड. एंड इफ यू ऐड दिस अप, 0 0 0 0 0 0 5, okay, 5 0 1, it's 6, and then 3 and 1, it's 4. ठीक है, so 4000 से 4600, this is actually the actual range of vital capacity, right? vital capacity 4000 से 4600 ml की रेंज में होती है, right? so this is incorrect definitely. functional residual capacity की बच्चे अगर मैं बात करूँ, तो functional residual capacity is somewhere around, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की अगर हम बात करें, हाँ, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी लगभग इसी के आसपास आएगी. ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको करना भी है, व्हाट एग्जैक्टली इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन योर लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. ठीक है, नॉर्मली आप एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर जब हम करते हैं, तो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम होती है, ठीक है, हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम है लंग्स में. ठीक है, अभी आप नॉर्मली इनहेल एक्सेल कर रहे हो, आपने नॉर्मली इनहेल किया, उसके बाद आप नॉर्मली जब एक्सेल करोगे, तो आप सिर्फ नॉर्मल एक्सेलेशन में टाइडल वॉल्यूम को एक्सेल आउट करोगे. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम विल स्टिल रिमेन इन द लंग्स, एंड दिस टुगेदर मेक्स अप फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, functional residual capacity बच्चे is actually a combination of expiratory reserve volume प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इफ आई को टेल यू. ठीक है, तो अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज आई सेड कितनी होती है? 1000 से 1100 ml. इट्स 1000 से 1100 ml. प्लस अगर मैं बात करूँ रेसिडुअल वॉल्यूम की, रेसिडुअल वॉल्यूम बच्चे होती है 1100 से 1200 ml. 1100 से 1200 ml. इफ वी कुड एड अप एंड गेट द रेंज हो जाएगी इसकी 0 0 1 2, एंड दिस बिकम्स 00 here 1 2 3,
एंड 112, ठीक है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की रेंज हो जाएगी 2100 ml to 2300 ml, राइट? 2100 ml to 2300 ml, सो या दिस इज करेक्ट, राइट? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी 2300 ml होती है, दैट्स ट्रू, ठीक है। बट इफ यू लुक एट द टोटल लंग कैपेसिटी, ये टोटल लंग कैपेसिटी इतनी आएगी जितना यहाँ पे लेकर कितना 3200 ml, नॉट एट ऑल आई से, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है बच्चे? टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल total volume of air which is accommodated in the lungs after forceful expiration. Forceful expiration के बाद total lung capacity यानी total कितने को once again, अब बच्चे बात करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी की। सो टोटल लंग कैपेसिटी बेसिकली होता है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन या इंस्पिरेशन। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रहेगा आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, तो रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो हमेशा से लंग्स में होता ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फोर्सफुली इनहेल कर रहे हो तो आप टाइडल वॉल्यूम भी इनहेल कर रहे हो और आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इनहेल कर रहे हो, आप टाइडल वॉल्यूम भी इनहेल कर रहे हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इनहेल कर रहे हो, राइट? सो इसके बाद टोटल कितना एयर लंग्स में रहेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स इज दिस, राइट? बेसिकली टोटल कितना एयर लंग्स में रहेगा, दिस मच अमाउंट ऑफ एयर विल रिमेन इन द लंग्स, ठीक है। तो अब इन सभी वॉल्यूम्स को बच्चे अगर आप ऐड करते हो ना, तो एक्चुअली में रेंज, अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ आई कुड टेल यू द रेंज, फॉर एग्जांपल टाइडल वॉल्यूम बच्चे कितना होता है, लेट्स गेट द नंबर्स आल्सो, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml, ठीक है, 500 लिख दिया बिकॉज दोनों साइड पे मुझे रेंज डिफाइन करनी है, ठीक है। दिस इज टाइडल वॉल्यूम। अब बच्चे अगर बात करो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो वो होता है 2500 से 3000 ml, वो होता है कितना 2500 से 3000 ml। उसके बाद बच्चे मैं बात करूँ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है बच्चे 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml, ठीक है, 1000 से 1100 ml। और बच्चे अगर मैं बात करूँ रेसिडुअल वॉल्यूम की, वो होता है 1100 से 1200 ml, वो कितना होता है 1100 से 1200 ml। इफ आई कुड टेल यू, ये देखो 0 0, ठीक है, 5 1 2 5 6 7 1 second 5 6 7 8 दिस इज 8 एंड दिस बिकम्स 3 4 5 5800, ठीक है। अपर रेंज हो जाएगी और लोअर रेंज 0 0 5 5 5 5 10 + 1 11, कैरी लगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5100 से लेके 5800 तक, राइट? 5100 ml से लेके 5800 ml तक, राइट? तो टोटल लंग कैपेसिटी की रेंज ये होती है, राइट, नॉट 3200 ml। सो नाउ यू गेट द आंसर। इनमें से कौन से तो करेक्ट है? सो सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर। तो एक तो टाइडल वॉल्यूम वाला करेक्ट था, एक फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी करेक्ट है, सो 1 and 3 becomes the correct answer, ठीक है। ऑप्शन नंबर C becomes the correct answer here. I hope this is clear to everybody. It should be. All right, now let's move on to the next question. The next question is question number 29. Question number 29 says, complete the following sentences by selecting the correct option. A, inspiratory capacity is 1 plus IRV. What do you think? Inspiratory capacity बच्चा क्या होता है? Inspiratory capacity होता है tidal volume, ठीक है, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट? सो फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा? ए टाइडल वॉल्यूम, राइट? सो वी कैन क्लियरली एलिमिनेट ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सेकंड इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वी जस्ट डिड दिस, राइट? वी जस्ट डिड दिस, हमें पता है वाइटल कैपेसिटी जो होता है, वाइटल कैपेसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम plus tidal volume plus expiratory reserve volume, right? This is equal to vital capacity. So second का vital capacity होगा. So we clearly get option number C as the correct answer, right? But again, we'll just check it out. Functional residual capacity भी we just discussed functional residual capacity. Functional residual capacity क्या होता है बच्चे? Functional residual capacity होता है expiratory reserve volume plus tidal volume. Functional residual capacity होता है expiratory reserve volume plus residual volume, right? Functional residual capacity is actually the volume of air that will remain in the lungs after normal expiration. तो normal expiration करोगे सिर्फ tidal volume आप बाहर भेजोगे, expiratory reserve volume और residual volume कहीं ना कहीं अभी भी आपके lungs में रह जाएगा, ठीक है। So C goes with residual volume. So option number 3 becomes the correct answer here, right? Option number 3. Let me just highlight it for all of you, and yeah, that makes option number 3 the correct answer. I hope this is clear to everybody. Okay, shall we move on to the next question? We should. Okay, the next question is, one second, just a moment everybody, let me just, okay. Question number 30 की अगर मैं बात करूँ, question number 30 बोलता है consider the following statements each with 1 or 2 blanks. अब मैं 1-2 blanks दे रखे, you have to consider all of them, ठीक है। So can I just quickly underline the blanks so that it makes more sense? This is 1, this is 2, this is 3, here's the blank, 4, and then where's the 5th blank? It's here, okay, so that you can clearly differentiate. Left lung has lobes, left lung has dash lobes, and right lung has dash lobes. What do you think? ठीक है, लेफ्ट लंग हैज लैश लोब्स एंड राइट लंग हैज डैश लोब्स। पहले सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। प्रॉन रिस्पायर्स विद डैश एंड इंसेक्ट्स विद डैश। ए मतलब थर्ड इज अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट इज रेफर टू एज द डैश ऑफ द लंग्स।
फिर ठीक है, डैश ऑफ द लंग्स. नाउ फिल अप द अबव ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट डू यू थिंक बच्चे? ठीक है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद 1 or 2 blanks each. लेफ्ट लंग हैज डैश लोब्स एंड राइट लंग हैज डैश लोब्स. व्हाट डू यू थिंक बच्चे? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बना सकी, यू नो, तो द लंग्स लुक समवट लाइक दिस. लेफ्ट लंग में यू नो स्लाइटली आपको एक ये ऐसे कॉन्कैविटी दिखती है. ठीक है, द स्ट्रक्चर दैट यू सी, यू नो, दिस इज व्हाट कार्डियक नॉच. ठीक है, सो अगर मैं राइट लंग की बात करूँ ना बच्चे, राइट लंग में एक्चुअली 3 लोब्स होते हैं. राइट लंग हैज 3 लोब्स. ठीक है, राइट लंग में वो 3 लोब्स कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा सुपीरियर लोब. ठीक है, एक होता है हमारा मिडिल लोब और एक होता है हमारा इंफीरियर लोब. ठीक है, यू हैव द सुपीरियर लोब, यू हैव द मिडिल लोब एंड देन यू हैव द इंफीरियर लोब. ठीक है, अगर मैं बात करूँ लेफ्ट लंग की, लेफ्ट लंग में हमारे पास 2 ही लोब्स होते हैं. एक होता है हमारा सुपीरियर लोब और एक होता है हमारा इंफीरियर लोब. राइट, तो अगर मैं बोलूँ राइट लंग में कितने लोब्स हैं? राइट लंग में एक्चुअली हमारे पास 3 लोब्स होते हैं. वी कैन क्लियरली सी. राइट लंग में हमारे पास 3 लोब्स होते हैं. इट हैज 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग एज यू कैन क्लियरली सी इज 2 लोब्स. तो पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 2. पहले वाले में 3 नहीं, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3, ये तो गलत हो जाएगा. पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 2. ठीक है, इफ वी डिस्कस फर्दर, प्रॉन रेस्पायर्स विद डैश एंड इंसेक्ट्स विद डैश. व्हाट डू यू थिंक बच्चे? प्रॉन किसकी मदद से रेस्पायर करते हैं? प्रॉन एक्चुअली रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स. राइट, प्रॉन्स जो होते हैं दे एक्चुअली रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स. व्हेयरएज इंसेक्ट्स की बात करूँ, इंसेक्ट्स में ट्रेकियल सिस्टम होता है. ठीक है, सो प्रॉन्स रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, व्हेयरएज इंसेक्ट्स रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ ट्रेकिए. ट्रेकिए आर अ पार्ट ऑफ द ट्रेकियल सिस्टम. ट्रेकिए, ट्रेकियोल्स. ठीक है, so they respire with the help of trachea. Third है amount of air inhaled. Although हमारे पास correct answer हमें मिल गया, but if we try to fill in the fifth blank, amount of air inhaled and exhaled with maximum effort is referred to as dash of the lungs. ठीक है, amount of air, 1 second. Let me just draw it 1 second. There you go. 1 minute. चलो हाँ, amount of air inhaled and exhaled with maximum effort. कितना air आप inhale और exhale कर सकते हो maximum effort लगा के. ठीक है, कितना एयर इनहेल या एक्सहेल कर सकते हो मैक्सिमम एफर्ट के साथ? तो देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट होता है. ठीक है, मैक्सिमम अगर आप इनहेल करोगे, मैक्सिमम अगर आप इनहेल करने की कोशिश करोगे तो आप टाइडल वॉल्यूम इनहेल कर पाओगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनहेल कर पाओगे. इसके बाद आप मैक्सिमम एफर्ट लगा के कितना एक्सहेल कर सकते हो? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हो. एंड दीज 3 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वाइटल कैपेसिटी. राइट, तो फिफ्थ का वाइटल कैपेसिटी होना चाहिए. तो बिकॉज ये दोनों इनकरेक्ट है एंड हेंस वी गो विद ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर. राइट, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर A. I hope this is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 31 actually. ठीक है, अब question number 31 बच्चे क्या बोलता है? Consider the following statements each with 2 blanks. ठीक है, again you have to consider the statements and each of them have 2 blanks. ठीक है, 1 second, let me actually just, ये first है, ये second, this is the third blank, this is the fourth blank, this is the fifth blank, this is the sixth blank. Okay, now we can read it. First statement है actually only about dash ml of air enters the lung alveoli for the exchange of gases. The remaining fills the respiratory passage and is termed as dash. Second है the amount of air which one can inhale with maximum effort and also exhale with maximum effort is termed as dash, and it is about dash in normal adult person. Third है during normal quiet breathing on an average approximately dash ml of air is inspired or expired by an adult human male in each breath. It is termed as dash volume. Now which of the following option gives the correct fill-ups for the respective blank numbers from 1 to 6 in the above statements? ठीक है, I hope you understood the question. ठीक है, fill in the blanks है, you have to fill in accordingly. ठीक है, तो let's see and let's try and do it. देखो, अगर मैं बात करूँ बच्चे पहले वाले की, consider the following statements and you have to tell me कि इनमें से क्या ठीक है. राइट, ठीक है, तो अब देखो ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करो तो ध्यान देना. ओनली अबाउट डैश ml ऑफ एयर एंटर्स द लंग एल्वेलाई. बच्चे बोलेंगे 500 ml एंटर्स द लंग एल्वेलाई. नहीं बच्चे, 500 ml इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू इनहेल और एक्सहेल नॉर्मली. लेकिन पूरी 500 की 500 ml एक्चुअली में एल्वेलाई में नहीं पहुंचती, बिकॉज आप देखो ना पूरा एक रेस्पिरेटरी पैसेज है. ठीक है, कि आपके पास ये पूरी नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी लीड्स टू ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड होती है, ब्रोंका है, ब्रोंका डिवाइड होती है, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर मतलब पूरी की पूरी 500 ml मान लो अगर इसमें एल्वेलाई में पहुंच जाएगी तो फिर ये रीजन में वैक्यूम क्रिएट नहीं हो जाएगा. डोंट यू फील यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है. राइट, पूरा का पूरा 500 थोड़ी पहुंच रहा है. यहाँ पे भी तो इस पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी तो एयर फिल होती है, पूरे में हवा भरेगी, और यानी पूरे में अगर यहाँ पे एयर फिल है तो पूरी की पूरी 500 तो नहीं जा रही है. तो एक्चुअली में कितनी जाती है? एक्चुअली में समवेयर अराउंड 350 ml जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इट्स 350 ml इज एक्चुअली व्हाट एन नो. No, 1 second. No, it's actually 150 ml. 150 ml के आसपास, if I'm not wrong, 150 ml के आसपास is the what actually goes to the lungs, to the lung alveoli. और जो remaining 350 ml होती है ना, वो इस respiratory tract में fill होती है, भरी रहती है. Of course, इस respiratory tract में vacuum थोड़ी create करोगे. तो वो जो remaining volume of air जो actually इस respiratory tract में भरी रहती है, which is somewhere around 350 ml, जो 350 ml के आसपास होती है, इसको हम dead space air भी बोलते हैं. This is actually called as the dead space air. ठीक है,
because this is not actually being used for respiration, right? So याद रखना, only about dash ml of air enters the lung alveoli. कितनी ml lung alveoli में enter कर रही है? Lung alveoli में सिर्फ, if I'm not wrong, सिर्फ 100 से 150 ml enter करती है, ठीक है? Once again, how to, ठीक है? सो एक्चुअली कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्चुअली एंटर करती है लंग्स में एक्चुअली 100 ml ऑफ एयर, ओनली अबाउट 100 ml ऑफ एयर इज एक्चुअली 150 ml होती है, वो एक्चुअली में लंग एल्वेलाई में एंटर करती है, वरना जो रिमेनिंग 350 ml के आसपास होती है वो तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही आपकी रह जाती है, एंड दैट इज रेफर टू एज डेड स्पेस एयर. द रिमेनिंग विच फिल्स द रेस्पिरेटरी पैसेज, इसको हम डेड स्पेस एयर बोलते हैं. फिर होता है नेक्स्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर which one can inhale with maximum effort and also exhale with maximum effort, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, जो आप मैक्सिमम एयर एफर्ट से इनहेल कर सकते हो, ठीक है, कितना मैक्स, देखो तो एक रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट होगी. मैक्सिमम एफर्ट से आप कितना इनहेल कर लोगे, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मैक्सिमम एफर्ट से आपने इनहेल कर लिया, एंड दैट यू कैन ऑल्सो एक्सहेल विद मैक्सिमम एफर्ट. एक्सहेल आप कितना कर सकते हो मैक्सिमम एफर्ट से, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दिस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द वाइटल कैपेसिटी, राइट? तो थर्ड का हमारे पास क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी थर्ड का हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड का हमारे पास हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है? एंड इट इज अबाउट डैश इन नॉर्मल एडल्ट पर्सन. अभी हमने कैलकुलेट किया था वाइटल कैपेसिटी की रेंज, वी जस्ट डिड दैट कपल ऑफ मिनट्स बैक, राइट? वाइटल कैपेसिटी की रेंज क्या होती है, 4000 से 4600 ml, right? 4000 to 4600 ml. We just did that. You can literally take the video a little back, drag it a little bit, and you'll be able to see कैसे हम मिलते हैं हमें टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करके, राइट? तो इट इज अबाउट डैश इन अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन 4000 से 4600 ml के आसपास. तो फोर्थ में 4000 ml यहाँ पे है ऑप्शन में, ठीक है? फिर थर्ड बोलता है ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली इतना ml एयर इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय एडल्ट ह्यूमन मेल इन ईच ब्रेथ. नॉर्मली जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम नॉर्मल कंडीशंस में ब्रीथ कर रहे हैं, तो हम कितना एयर इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, कितना एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी इनहेल और एक्सहेल नॉर्मली, लाइक ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन है, नॉर्मली जब हम रिस्पायर करें, दैट्स approximately 500 ml, ठीक है? 500 ml एयर, which is half a liter of air is what we are inhaling, exhaling under normal conditions. तो इसको हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, दिस इज रेफर टू एज टाइडल वॉल्यूम. सो ऑप्शन नंबर ए फिल्ड अप ऑल द ब्लैंक्स एंड मेक्स ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, राइट? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, राइट? द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड्स, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हमारे पास क्या हो जाता है, ए टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और डी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. व्हाट डू यू थिंक बच्चे? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी में एक्चुअली क्या क्या आ जाता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में बच्चे हमारे पास आ जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस व्हाट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन. तो आपने नॉर्मली इनहेल किया, फिर नॉर्मली एक्सहेल किया, ठीक है? इसके बाद नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद आप मैक्सिमम वॉल्यूम, लाइक टोटल कितना एयर को इनहेल कर सकते हो, टोटल कितना कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम भी कर सकते हो प्लस दिस एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर विच इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको भी कर सकते हो. सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कंप्राइजेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दैट मेक्स ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हियर. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबडी, इट शुड बी, ठीक है? वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है, देखा वाइटल कैपेसिटी से और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, सो यू कैन काइंडली टेक अ नोट ऑफ इट, राइट? अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है, वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 33 says vital capacity of lungs is A inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume, B inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume minus residual volume, C inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume plus residual volume, or is it D inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume. तब तो हम सबको पता चल गया है vital capacity एक्चुअली में क्या होता है, inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume. So option number D becomes the correct answer here. I hope this is clear to everybody. 33 का correct answer क्या हो जाएगा, option number D. I hope this is clear to everybody. Let's discuss further. We move on to the next question. The next question is question number 34. So you can clearly see I've literally, I think there are 100 questions, somewhere around 100 questions, और बहुत मेहनत लगती है यार इन PPTs को present बनाने में. It just takes in a lot of effort. So I really hope if you're actually enjoying the explanation that we're providing plus the quality of question that I brought, and of course it's brought from one of the best books in the market.
underneath your category MDG. ठीक है, तो and if you're really enjoying the question series and if you know do spread the word is what I will say, you know, because knowledge only increases if you share it. And yeah, that's it. If you're enjoying, do hit that subscribe button and do drop in your comment. I'd love to read them. But coming back to the question now, question number 34 bolta hai, after forceful inspiration, the amount of air that can be breathed out by maximum forced expiration is equal to A, inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume plus residual volume, B, inspiratory reserve volume plus residual volume plus expiratory reserve volume, सी है, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म्स में बोलूँ, अब आई आर वी प्लस टी वी प्लस ई आर वी, डी है टी वी प्लस आर वी प्लस ई आर वी, ठीक है, बिकॉज नाउ आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वेल वर्स्ड विद द फुल फॉर्म्स, राइट. अब देखो, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज इक्वल टू, सबको डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा, दिस इज एक्चुअली वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, नाउ आई हैव ड्रॉन दिस यू नो डब्बा डायग्राम आई थिंक मेनी टाइम्स. आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है, तो देखो रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट है लंग्स में, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स. आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुली इंस्पायर करो, पहले तो फोर्सफुली जब आप इंस्पायर करोगे तब चलो तो आप टाइडल वॉल्यूम इनहेल करोगे, उसके बाद फोर्सफुली इंस्पायर करो तो कुछ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर भी इनहेल करोगे, विच इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट, ठीक है, आप मैक्सिमम कितना ब्रीथ आउट कर सकते हो, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट, ठीक है, मैक्सिमम कितना ब्रीथ आउट कर सकते हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, जान लगा के फोर्सफुली एक्सपायर करने की कोशिश करो तो इन तीनों को ब्रीथ आउट कर दोगे, एक्सेल आउट कर दोगे, रेसिडुअल वॉल्यूम विल स्टिल रिमेन in the lungs, and these three together constitute what? The vital capacity. So inspiratory reserve volume plus tidal volume plus expiratory reserve volume. Option number C becomes the correct answer here. I hope this is clear to everybody. Let's move on to the next question. The next question, बच्चे, is question number 35. Question number 35 बोलता है, you have to match column 1 with column 2 and then you have to select the correct option from the given codes. column 1 को column 2 के साथ match कर रहे हैं, you have to select the correct options from the given codes. ठीक है, column 1 की अगर मैं बात करूँ, column 1 में we have tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, residual volume and E is vital capacity. और column 2 में उनकी ranges दे रखे हैं. तो ठीक है, अब tidal volume की बच्चे अगर मैं बात करूँ, so tidal volume कितना होता है, tidal volume we're all aware is 500 ml of air. ठीक है, tidal वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml. ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर मैं रेंज की बात करूँ, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 से 3000 ml, 2500 to 3000 ml. ठीक है, सो A goes with 3, A goes with 3 in 3 options, right? A goes with 3, B goes with 1, B goes with 1 in 2 options, so you can clearly eliminate A and D. ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करूँ, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बच्चा कितना होता है, इट इज 1000 to 111 ml, राइट, 1000 से 1100 ml, 1000 to 1100 ml. ठीक है, 1000 से 1100 ml होता है, तो इन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000 ml ऑफ एयर. सी गोज विद 2, सी गोज विद 2 इन ओनली ऑप्शन नंबर 2, राइट, तो ये भी कट गया. दैट मेक्स ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, बट अगेन वी लुक एट द रिमेनिंग ऑप्शंस एज वेल. रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करूँ, रेसिडुअल वॉल्यूम बच्चा कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml. सो डी गोज विद ऑप्शन नंबर 5. ठीक है, डी गोज विद ऑप्शन नंबर 5. और अगर मैं बात करूँ वाइटल कैपेसिटी की, वी जस्ट डिस्कस दिस अ कपल ऑफ मिनट्स बैक. एक्चुअली द मोर प्रिसिजन ऑफ कॉन्सेप्ट इज 4000 से 4600 ml. अभी हमने देखा था 4000 से 4600 ml. If we go by the values which are given in our textbook, and that is the standard textbook for NEET UG exam, so we'll stick to that. But again, ये जो हमारी जो रेंज है, जो टेक्स्ट रेंज है, ये इसमें कवर हो जा रही है ना कहीं कहीं. They have given 3400 से 4800 ml. Of course, there's always a range and there's always an alteration. Pinpointed values नहीं होती हैं, right? This is biology, right? Here you do not get specific answers. You're talking about the human body, right? अब एक स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं होगी, बट ये जो हमारी टेक्स्ट बुक की रेंज है, दिस एक्चुअली फॉल्स इन दिस रेंज. सो ई गोज विद 4, ई गोज विद 4, एंड दैट मेक्स ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. नाउ यू नो द रीजन व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Okay, let's move on to the next question, which is question number 36. Again, another match the following kind of question. Let's read it carefully. Question number 36 बच्चे बोलता है, you have to match column 1 with column 2 and then you have to select the correct option from the codes given below. ठीक है, column 1 को column 2 के साथ match करो and then select the codes which are given below. Column number 1 की अगर मैं बात करूँ, column number 1 में we have A, tidal volume plus expiratory reserve volume. Then we have residual volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume. सी हो जाएगा expiratory reserve volume plus residual volume. अच्छा, अब इनमें से कौन क्या है बेसिकली इज व्हाट देयर आस्किंग. है 3 हमें दे रखे हैं, expiratory capacity, total lung capacity, functional residual capacity. Okay, let's match the columns. Tidal volume plus expiratory reserve volume. Tidal volume plus expiratory reserve volume actually makes up what? Expiratory capacity. A goes with 1.
ए गोज विद 1, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलकर बनाते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब ये चारों वॉल्यूम्स, ठीक है, चारों वॉल्यूम्स हमारे पास टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हो गई टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। सो बी गोज विद 2, बी गोज विद 2 डेफिनेटली, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, दिस मेक्स अप द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओ सो ये सामने सामने वाला है, राइट। ए गोज विद 1, B goes with 2 and C goes with 3, and that makes option number A the correct answer here. Option number A becomes the correct answer. I hope this is crystal clear to everybody. ठीक है, 36 का correct answer बच्चे क्या हो जाएगा? Option number A. I hope this is clear to everybody. ठीक है, now we move on to the next question. The next question is question number 37. Question number 37 बोलता है बच्चा, the exchange of gases in the alveoli of the lungs takes place by A. passive transport, B. active transport, C. osmosis, or D. simple diffusion. हम सबको पता है कि बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट, जो जब हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं एल्वेलाई के थ्रू या फिर इवन सिस्टमिक कैपिलरीज और टिश्यूज के थ्रू, दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, राइट, दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट और द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है फ्रॉम द एल्वेलाई टू द पल्मोनरी, फ्रॉम द एल्वेलाई टू द पल्मोनरी कैपिलरीज, और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो होता है फ्रॉम द कैपिलरीज टू द एल्वेलाई, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, विच इज बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन की मदद से। सो ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस डज नॉट रियली रिक्वायर एनी ATP, किसी ATP की प्रेजेंस में नहीं होता, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका सिंपल डिफ्यूजन की मदद से होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is option number 30, question number 37, right? This is a diagram based question. I hope the diagram is relatively visible, ठीक है। I've tried to snip it in the best way possible, but I really hope it's visible, ठीक है। तो दिख तो जाएगा ही यार, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को अगर रीड आउट करूँ, the given figure shows diagrammatic representation of exchange of gases at the alveolus and the body tissues with blood and transport of oxygen and carbon dioxide. Identify the blood vessels A to D, right? अब बेसिकली यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स वगैरह आइडेंटिफाई करने हैं। पूरा एक फिगर दे रखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई देन एट द लेवल ऑफ बॉडी टिश्यूज, राइट, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको बताना है कि कौन सी ब्लड वेसल्स क्या क्या है। अगर मैं बात करूँ ए की, तो आप क्लियरली देख सकते हो ए वाली जो ब्लड वेसल है, पहली बात तो उसमें एरो ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, टिश्यूज से गैसेस एक्सचेंज हुआ, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल गया, टिश्यूज से CO2 रिच जो ब्लड है, ठीक है, वो इस वाली वेन से, इस वाली ब्लड वेसल से इवेंचुअली किस में आ रहा है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में द ब्लड वेसल विच एक्चुअली डम्प्स ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट एट्रियम इज एक्चुअली वीना केवा, राइट, वीना केवा होती है बेसिकली। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लेबलिंग देखोगे तो एनसीईआरटी में वीना केवा नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में याद है जब मैंने बॉडी मतलब इस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन किया, तो मैंने डिकोडेड दिस डायग्राम, एक कैटेगोरिकली टोल्ड यू, ठीक है, कि जो ब्लड वेसल जो ब्लड लेके आ रही है टिश्यूज तक, दैट इज द सिस्टमिक आर्टरी, और जो ब्लड वेसल विच इज टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज इनटू द हार्ट, दैट सिस्टमिक वेन, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा सिस्टमिक वेन, ठीक है। सो वी कैन क्लियरली एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड सी, तो ए हो जाएगा हमारा सिस्टमिक वेन। अगर मैं बात करूँ बी की, सो बी वो ब्लड वेसल है, देखो ए जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए, पम्प्ड इट इनटू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है इस ब्लड वेसल के थ्रू इवेंचुअली लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। सो नेम द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, दिस बी इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पहले वाले का हमारा बेसिकली क्या थे, हमारे दो ऑप्शन जो कंसिडरेशन में थे, एक तो था सिस्टमिक वेन और अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी इज व्हाट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। सो आई थिंक वी आर ओनली लेफ्ट विद वन आंसर एंड दैट्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट अगेन विल हैव अ लुक एट द अदर ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। सी के बच्चे अगर मैं बात करूँ, सी जो है, अब देखो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन हमने यहाँ पे डिफ्यूज कर लिया। अब लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन सी ब्लड वेसल लेके आती है लंग्स हार्ट तक, दैट इज द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन विल एक्चुअली इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्रिंग्स इट टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी हमारी पल्मोनरी वेन। और डी के बच्चे अगर मैं बात करूँ, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी टिश्यूज को मिल जाएगा। एक्चुअली एओर्टा होती है, फिर एओर्टा ब्रांच करती है डिफरेंट आर्टरीज में, पर एनसीईआरटी की लेबलिंग के हिसाब से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप हुआ तो वो सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में डंप हो जाता है, इट्स गिवन टू द एंटायर बॉडी। सो डी हमारा हो जाएगा सिस्टमिक आर्टरी। सो सी बिकम्स पल्मोनरी वेन एंड डी बिकम्स सिस्टमिक आर्टरी, दैट मेक्स ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 39, राइट, लेट्स डू इट टुगेदर।
All right, now let's read question number 39, and here's what it says. Question number 39 बोलता है, consider the following statements, each with two blanks. A first है, diaphragm contracts to help in dash while the contraction of the abdominal muscles help in dash. ठीक है, देखो डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है टू हेल्प इन डैश। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फॉर एग्जांपल डायफ्राम इज यूजुअली डोम शेप, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो वो डोम शेप से फ्लैट हो जाता है। ठीक है, डोम शेप से फ्लैट हो जाता है बेसिकली। तो बेसिकली जब वो डोम शेप से फ्लैट होगा तो क्या होगा, जो हमारी वॉल्यूम है, जो हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम है, वो विद थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, यानी पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी। वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो अंदर का जो प्रेशर है, जो अंदर का प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, और एयर जो है इट विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर, तो इंस्पिरेशन होगी। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेल्प इन इंस्पिरेशन, तो पहले का इंस्पिरेशन होगा। तो उस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी ही बचा हुआ है करेक्ट आंसर। ठीक है, बट अगेन विल लुक एट द रिमेनिंग ऑप्शन। वाइल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अब्डोमिनल मसल्स, लेकिन जब अब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऊपर वाला रीजन होता है थोरेसिक रीजन, फिर सेपरेटेड बाय द डायफ्राम, देन यू हैव द अब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे अब्डोमिनल कैविटी में जो अब्डोमिनल मसल्स होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये जो डोम शेप डायफ्राम है, ये इसे और ऊपर की डायरेक्शन में पुश करते हैं और ये और डोम शेप हो जाता है, राइट। तो बेसिकली जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो एयर जो है वो और फोर्सफुली एक्सेल आउट होगी, राइट, हाई प्रेशर से बाहर लो प्रेशर में। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अब्डोमिनल मसल्स जो होता है वो हमें हेल्प करता है इन फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। ठीक है, सो ए का इंस्पिरेशन, बी का फोर्स्ड एक्सपिरेशन, राइट। सो 1 एंड 2 का तो अभी यही है। ठीक है, ओके, अगर मैं बात करूँ थर्ड की, तो सेकंड स्टेटमेंट बोलता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ ट्रेन्ड एथलीट इज डैश देन दैट ऑफ नॉन एथलीट्स व्हाइल द वाइटल कैपेसिटी ऑफ नॉन स्मोकर्स इज डैश देन दैट ऑफ स्मोकर्स। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, अगर मैं बात करूँ वाइटल कैपेसिटी की, तो वाइटल कैपेसिटी जो ट्रेन्ड एथलीट्स होते हैं उनकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अस नॉन एथलीट्स। ठीक है, दे कैन रिलेटिवली इंस्पायर एंड एक्सपायर मोर अमाउंट ऑफ एयर, राइट। तो उनकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, दैट्स हायर, देयर वाइटल कैपेसिटी इज हायर देन दैट ऑफ नॉन एथलीट, वाइल द वाइटल कैपेसिटी ऑफ नॉन स्मोकर्स इज डैश देन दैट ऑफ स्मोकर्स। और जो वाइटल कैपेसिटी नॉन स्मोकर्स की होती है, नॉन स्मोकर्स लाइक अस जो स्मोकिंग नहीं करते, उनकी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है देन एज कम्पेयर टू स्मोकर्स। बिकॉज स्मोकिंग से क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्मोकिंग से क्या होगा, स्मोकिंग से आपकी जो एल्वेोलार वॉल है, सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एम्फाइसीमा, एल्वेोलार वॉल डैमेज हो जाएगी, रिड्यूस सर्फेस एरिया हो जाएगा, तो इतना एयर को आप इनहेल या एक्सेल कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो जो वाइटल कैपेसिटी होती है एक नॉन स्मोकर की वो ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ स्मोकर। सो थर्ड का भी हायर, फोर्थ का भी हायर, एंड दैट मेक्स ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। Okay, although we've got the correct answer, but again, we'll read out the third statement. Alveolar partial pressure is dashed than the venous pressure. Once again, we'll read out the third statement now. Alveolar partial pressure of oxygen is dashed than the venous partial pressure of oxygen, while arterial partial pressure of oxygen is dashed than the alveolar partial pressure. एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है देन द वीनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ से डी फॉर एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ, यहाँ से देखो जाने वाले ब्लड को मैं इंडिकेट करती हूँ एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे जो आ रहा है लेट्स से पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड, वो उसको मैं डिनोट करती हूँ लेट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ मैं फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर देती हूँ हमारी एल्वियोलाई। अगर मैं बात करूँ एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का दैट समवेयर अराउंड 104 mmHg, 104 mmHg होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg होता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 95 mmHg। तो अब आप क्लियरली इन वैल्यूज से इंडिकेट कर सकते हो कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का इज हायर। जो एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है, एल्वियोला पार्शियल प्रेशर जो होता है दैट्स हायर। ठीक है, दैट्स हायर दैन द वीनस पार्शियल प्रेशर। वीनस ब्लड में यानी कि जो वेन से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके कंपैरिजन में एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, हायर दैन द वीनस पार्शियल प्रेशर। वाइल आर्टीरियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डैश दैन द एल्वियोलार प्रेशर। आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, आर्टरीज में जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है विच इज 95, इट इज लेस दैन द एल्वियोलार पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इट इज लेस देन द एल्वियोलार पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये पहला, फिफ्थ है हायर, सिक्स होगा लोअर। ठीक है, इन केस यू वांट टू मेक दोज, if in case you want to attempt those as well. I hope this is clear to everybody. So I really hope you are satisfied with the content that we're providing here. Question number 40 की अगर मैं बात करूँ तो which of the following would have been, one second, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है which of the following would have the same oxygen content, इनमें से किनका सेम ऑक्सीजन कंटेंट होगा। वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है बच्चा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द सेम ऑक्सीजन कंटेंट, इसमें से किस में सेम ऑक्सीजन कंटेंट होगा। ए, ब्लड विच इज एंटरिंग द लंग्स एंड ब्लड विच इज लीविंग द लंग्स। बी, ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड लीविंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट। सी होगा ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड लीविंग द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। एंड इज इट ऑप्शन नंबर, और इज इट ऑप्शन नंबर डी, द ब्लड एंटरिंग द टिश्यू कैपिलरीज एंड ब्लड विच इज लीविंग द टिश्यू कैपिलरीज। इन सब में से किस में
सेम ऑक्सीजन कॉन्टेंट होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ इन अ डब्बा डायग्राम टू हेल्प यू एक्चुअली क्विकली विजुअलाइज दिस बेटर. 1 second. Let's go with the color red. There you go. 1 second. All right. For example, if I could quickly draw in a dabba diagram to help you visualize, let's say ये dabba diagram है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ठीक है. 1 second, ठीक है. This is, let's say for instance, this is the lungs और नीचे मैं बना देती हूँ body tissues, ठीक है. अब एक बार हम पूरे फ्लो चार्ट ट्रेस करते हैं, ठीक है. और एक मिनट, let me just divide it as well into the left and right portions. 1 second, ठीक है. तो हम सबको पता है यहाँ पे ये हमारा राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, ठीक है. दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लंग्स, दीज आर द लंग्स, ठीक है. और ये हो जाएगा हमारा बॉडी, मतलब टिश्यूज, बेसिकली टिश्यूज, ठीक है. चलो, ओके, नाउ लेट्स ट्रेस द पैटर्न. ब्लड एंटरिंग द लंग्स एंड ब्लड लीविंग द लंग्स, ठीक है. ब्लड जो एंटर कर रहा है लंग्स में, वो ब्लड जो लीव कर रहा है लंग्स को. तो देखो टिश्यू से जो क्या कहते हैं, हमारी वीना केवा हैं, ठीक है, वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएंगी एंड दिस इज द ब्लड विच इज एंटरिंग द लंग्स. तो जो ब्लड एंटर कर रहा है लंग्स में, उसमें कितना ऑक्सीजन कॉन्टेंट होता है जो ब्लड एंटर कर रहा है, सॉरी, द वंस अगेन entering the lungs, appetite, focus. Okay, now अब देखो ब्लड एंटरिंग द लंग्स एंड ब्लड लीविंग द लंग्स, ठीक है. अब वो देखो राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो एंटर करता है लंग्स में. पल्मोनरी आर्टरी में हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का, दैट इज 40 mmHg, ठीक है. ब्लड एंटरिंग द लंग्स हैज 40 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ब्लड विच इज लीविंग द लंग्स, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लीव कर रहा है, जो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में आता है, ठीक है, उस ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, इट इज 95 mmHg, 95. तो इन दोनों में तो सेम नहीं है, दे डू नॉट हैव द सेम ऑक्सीजन कंटेंट, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस हियर, ठीक है. फिर है नेक्स्ट है ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड लीविंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ब्लड विच इज एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट, वो ब्लड जो एंटर कर रहा होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में. तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में राइट एट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है, वीना केवा के थ्रू आता है, ठीक है. वीना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 40 mmHg, ठीक है. ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड लीविंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ब्लड लीव कैसे करता है राइट साइड ऑफ द हार्ट को, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ही जाता है लंग्स पे. तो पल्मोनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसमें भी पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 40 mmHg होता है. तो यू कैन क्लियरली सी both the blood which is entering the right side of the heart and the blood which is leaving the right side of the heart, both of them they have the same oxygen content. दोनों में partial pressure oxygen का same ही है, ठीक है. So option number B becomes the correct answer. I hope this made perfect sense to everybody. Did it? ठीक है. ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया कि ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट. So let's make option number B the correct answer. Why are others incorrect? If you see blood entering the right side of the heart, blood which is entering the right side of the heart, 1 second, तो blood ये जो enter कर रहा है right side of the heart ये रहा, ठीक है. And blood leaving the left side of the heart, blood which is entering the right side of the heart and blood leaving the left side, ठीक है. तो blood जो enter कर रहा है right side में, ठीक है, वो है deoxygenated blood, ठीक है. जो right atrium में enter करता है उसमें partial pressure of oxygen as I just said is 40 mmHg. blood which is leaving the left side of the heart, ठीक है. left side में हमें पता है कैसे, eventually right atrium से right ventricle से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड इट विल लीव द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड विल बी पंप टू द बॉडी. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हुआ टू द बॉडी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 95 mmHg. तो क्या इन दोनों में ऑक्सीजन कॉन्टेंट सेम है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता. लास्ट है हमारे पास ब्लड एंटरिंग द टिश्यू कैपिलरीज एंड ब्लड लीविंग द टिश्यू कैपिलरीज. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड आया विच इज एंटरिंग द टिश्यू कैपिलरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. जैसे कि मैंने बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है इस ब्लड में, 95 mmHg, ठीक है. सो ब्लड विच इज एंटरिंग द टिश्यू कैपिलरीज हैज 95 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. अब यहाँ से ब्लड विच इज लीविंग द टिश्यू कैपिलरीज, जो टिश्यू कैपिलरीज को लीव कर रही हैं, ठीक है. ब्लड विच इज लीविंग द टिश्यू कैपिलरीज, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है. यहाँ से टिश्यू से अभी जो ब्लड जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 mmHg. तो इन दोनों में भी सेम ऑक्सीजन कॉन्टेंट नहीं है. आई होप आई हैव डिकोडेड द क्वेश्चन relatively well, ठीक है. Let's move on to the next question. The next question is question number 41. Question number 41 बोलता है बच्चे, what is the approximate normal composition of alveolar air? नॉर्मल कॉम्पोजिशन क्या होती है alveolar air की, if I could ask you, ठीक है. A 14% ऑक्सीजन, 6% कार्बन डाइऑक्साइड, 80% नाइट्रोजन. B 21% ऑक्सीजन, 2% कार्बन डाइऑक्साइड, 77% नाइट्रोजन. C 16% ऑक्सीजन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 81% नाइट्रोजन. और इसे D 10% ऑक्सीजन, 8% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 82% नाइट्रोजन. व्हाट डू यू थिंक बच्चे, क्या नॉर्मल कॉम्पोजिशन होती है एल्वेलार एयर की? एल्वेलाई में जो एयर होती है इसकी नॉर्मल कॉम्पोजिशन आप मुझे बता सकते हैं? तो एल्वेलाई में जो एयर होती है बच्चे इसकी नॉर्मल कॉम्पोजिशन क्या होती है? 14% ऑक्सीजन एंड 14% ऑक्सीजन,
6% carbon dioxide and 80% nitrogen. I know this is a fact which is not given in NCERT, not in NCERT, I'd tell you, but still, if you want to be prepared for an advanced paper, you got to learn the fact. This is a fact, right? This is a factual data. ठीक है कि जो नॉर्मल कॉम्पोज बेसिकली जो ब्लड है, ठीक है, आप एल्वेलाई में जो ब्लड है बेसिकली इसके पार्शियल प्रेशर तो ऑक्सीजन में दे, मतलब पार्शियल प्रेशर तो दे रखे कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 104 mmHg, CO2 का होता है एल्वेलाई में 40 mmHg, ठीक है, बट ये तो दे रखा है, बट परसेंटेज वाइज नहीं दे रखा. दिस इज द पार्शियल प्रेशर्स, राइट. कॉम तो 14% ऑक्सीजन होती है, 6% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 80% नाइट्रोजन होती है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, सो काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 says the CO2 content by volume in the atmospheric air is about A 3.34%, B 4%, C 0.0314%, C है 0.0314% और D है 2.1%. व्हाट डू यू थिंक? CO2 कंटेंट, ठीक है, CO2 कंटेंट. अगर मैं CO2 कंटेंट की अगर मैं बात करूँ, CO2 कंटेंट बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट, CO2 कंटेंट कितना है बच्चे? ठीक है, CO2 कंटेंट कितना होता है एटमॉस्फेरिक एयर में, हम सबको पता है. CO2 कंटेंट कितना होता है? व्हाट इज लाइक द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर 0.03% बाय वॉल्यूम, राइट. कितना पार्शियल प्रेशर, एक तरीके से कितना 0.03% होता है ना पार्शियल प्रेशर. तो या ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर हो. इतना कंटेंट होता है वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेरिक एयर. once again, ठीक है. अब बच्चे हम बात करते हैं CO2 कंटेंट बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट, व्हाट डू यू थिंक द CO2 कंटेंट इज? इट्स 0.0314%. ठीक है, 0.03% ही तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर, राइट. वी हैव 78% नाइट्रोजन, वी हैव 21% के अराउंड ऑक्सीजन, एंड देन वी हैव 0.03% ऑफ CO2. I hope that's clear to everybody. Option number C becomes the correct answer here. Let's move on to the next question. The next question is, among the partial, one second. Question number 43 says, among the following partial, once again. Here we have question number 43 and let's see what it says. Question number 43 बोलता है, among the following, the partial pressure of oxygen is maximum in सब में से पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो किस में सबसे ज़्यादा है? ए एल्वेला, ए बी आर्टीरियल ब्लड, सी वीनस ब्लड और डी एक्सपायर्ड है. व्हाट डू यू थिंक बच्चे? इन सब में से जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो किस में सबसे ज़्यादा है? किसमें सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का? व्हाट डू यू थिंक? एल्वेला, एयर, आर्टीरियल ब्लड, वीनस ब्लड और एक्सपायर्ड ब्लड. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? अब इन सब में आपको कंपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए यू हैव टू कंपेयर. ठीक है, सबसे लेट मी मेक द डेटा, राइट. अगर मैं बात करूँ एल्वेलार एयर की, ठीक है, एल्वेलार एयर की अगर हम बात करें, एल्वेलाई में जो एयर आती है उसमें कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का? इट्स 104 mmHg. कितना होता है? 104 mmHg. अगर मैं बात करूँ आर्टीरियल ब्लड का, यानी ऑक्सीजन, आर्टीरियल ब्लड में बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात करें, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है यूजुअली विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. अगर मैं बात करूँ आर्टीरियल ब्लड की, इफ आई टॉक अबाउट आर्टीरियल ब्लड, लेट्स से आर्टीरियल ब्लड में बच्चे कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का? आर्टीरियल ब्लड हैज बेसिकली 95 से 100 mmHg तक हो जाता है, बट एनसीईआरटी में इट्स गिवन 95, सो या 95 mmHg. अगर मैं बात करूँ वीनस, वीनस मतलब वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, दैट इज 40 mmHg. दैट इज 40 mmHg. और अगर मैं बात करूँ एक्सपायर्ड एयर की, एक्सपायर्ड एयर में वेरी कर, देखो एक्सपायर्ड एयर की अगर बात करूँ, और तो ये एनसीईआरटी ने डेटा दे तो रखा नहीं, एक्सपायर्ड एयर वाला नहीं दे रखा, ये वाला नहीं दे रखा, नॉट इन एनसीईआरटी. ठीक है, एक्सपायर्ड एयर में देखो जो एक्चुअली में एक्सपायर्ड में वेरी करता है. ठीक है, आप कितने कैसे एक्सपायर कर रहे हो ना, तो एक्सपायर्ड एयर में बेसिकली पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो वेरी करता है, बट इट्स ऑलवेज लोअर दैन द एल्वेला एयर. एल्वेला एयर में जो प्रेशर होगा उससे तो कम ही होगा. ठीक है, तो इट्स लोअर दैन एल्वेलार एयर फॉर श्योर. ठीक है, एल्वेलाई में जो होगा उससे तो लोअर ही होगा, तभी तो एल्वेलाई से वो एयर बाहर मूव कर रही है. एयर हम सबको पता है ऑलवेज मूव्स, एनी एयर फॉर दैट इंस्टेंस मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर. और अगर ये एक्सपायर्ड एयर है यानी कि बाहर जा रही है, इट्स बीइंग एक्सहेल्ड आउट ऑफ लंग्स, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में मूव कर रही होगी. तो यानी इसमें जो भी पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, इट विल बी लोअर दैन द एल्वेलार air, right? So maximum partial pressure of oxygen is actually seen in alveolar air. It's 104 mmHg, right? Option number A becomes the correct answer here. I hope this is crystal clear to everybody. Let's move on to the next question. The next question is question number 44. Question number 44 बोलता है, in lungs, the air is separated from the venous blood through A, transitional epithelium plus tunica externa of blood vessels, B, squamous epithelium plus endothelium of blood vessels, C, squamous epithelium plus tunica media of blood vessels, or is it D, none of these? What do you think? लंग्स में एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड. जब हम लंग्स की बात करते हैं, ठीक है, लंग्स में हमारे पास बच्चे क्या है, लंग्स में वी हैव, व्हाट डू वी हैव लंग्स में? वी हैव, वन सेकंड, वी हैव द एल्वेलाई. ठीक है, लंग्स में हमारे पास क्या है? लंग्स में हमारे पास एल्वेलाई है, और एल्वेलाई के बाद हमारे पास क्या है? वी हैव द पल्मोनरी कैपिलरीज. ठीक है, तो
अब जो एयर है लंग्स में, यानी एल्विलाई में जो एयर है, हाउ डू यू सेपरेट इट फ्रॉम द वीनस ब्लड? अब यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये कैसे सेपरेटेड है, फ्रॉम द एल्विला ब्लड, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ certain layers, it's separate. Once again, okay, we'll do it again. चलो, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है लंग्स में जो एयर है, बेसिकली लंग्स में जो एयर प्रेजेंट है, हाउ इज इट सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वीनस ब्लड, यहाँ ब्लड बेसिकली पल्मोनरी कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन के लिए आ रहा है, ठीक है। ये और यहाँ पे भी कुछ ये यहाँ पे एल्विलाई में भी कुछ ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें भी कुछ ऑक्सीजन अमाउंट नॉट हैपनिंग वंस अगेन। ओके, अब देखो क्वेश्चन बोलता है इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू, ठीक है। लंग्स में हम सबको पता है कुछ एयर प्रेजेंट होगी, एल्विल लंग्स में मतलब एल्विलाई की बात करें, एल्विलाई में कुछ एयर प्रेजेंट होगी। हाउ इज इट सेपरेटेड फ्रॉम द एयर विच इज एक्चुअली डिजॉल्व इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी कैपिलरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ब्लड में कुछ गैसेस डिजॉल्व होंगी। अब ये और एल्विलाई में भी कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है, ऑफकोर्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह। ये दोनों आपस में सेपरेटेड कैसे हैं? हाउ आर द टू सेपरेटेड? दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में एक्चुअली क्या क्या आ जाता है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में आ जाती है हमारी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्विलाई, ठीक है। एल्विलाई में हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। और ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्लड वेसल्स में भी हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम विच इज प्रेजेंट इन द कैपिलरीज, राइट। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट इन द कैपिलरीज इज रेफर टू एज एंडोथेलियम, राइट। और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इन दोनों के बीच में एक डिफ्यूजन लाइक बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, राइट। नॉन सेलुलर लेयर है वो, ठीक है। तो जो एयर है एल्विलाई में वर्सेस द एयर विच इज प्रेजेंट इन दिस वीनस ब्लड, दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ए स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई एंड बी एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल। सो ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। I hope this is clear to everybody. Let's move on to the next question. The next question is question number 45, and it says the factor which does not affect the rate of alveolar diffusion is A, solubility of gases, B, thickness of the membrane, C, pressure gradient, or D, reactivity of the gases. What do you think? The factor which does not affect the rate of alveolar diffusion. बच्चे, the factor which does not affect the rate of alveolar diffusion, इनमें से कौन सा फैक्टर है? The factor which does not affect the rate of alveolar diffusion, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो alveoli की diffusion, once again, the factor which does not affect the rate of alveolar diffusion, इनमें से which out of these is a factor जो alveoli से जब gases diffuse होती हैं तो उसका कोई impact as such नहीं होता, ठीक है। solubility of gases से तो बहुत हमें फर्क पड़ता है, राइट। हमें पता है जो CO2 20 CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम ज़्यादा सोल्यूबल होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज अ फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन कितनी थिक है, व्हिच इज वाई एल्विलाई में आप देखो जो एल्विलाई की मेम्ब्रेन है, या वहाँ पे जो एल्विलाई की मेम्ब्रेन और जो हमारी ब्लड वेसल्स की जो मेम्ब्रेन है, वो जो एक्चुअली में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है, दैट्स वेरी वेरी थिन, राइट। लेस देन 1 मिलीमीटर, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मिलीमीटर्स की थिकनेस होती है। तो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। ज़्यादा मोटी लेयर होगी या ज़्यादा थिक लेयर होगी तो उससे डिफ्यूजन कराना इतना आसान नहीं होगा। प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ कोर्स मैटर करता है, बिकॉज एयर हमें पता है कोई भी गैस फॉर दैट इंस्टेंस हमेशा मूव करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। डी है रिएक्टिविटी ऑफ गैसेज। रिएक्टिविटी ऑफ गैसेज नहीं, इट डज नॉट रियली इफेक्ट द रेट ऑफ एल्वेलर डिफ्यूजन, ठीक है। कि गैसेज कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है इन नेचर, ठीक है। नेचर में कि ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है, CO2 ज़्यादा रिएक्टिव है, कितनी रिएक्टिव है वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ एल्वेलर डिफ्यूजन, नॉट एट ऑल। सो ऑप्शन नंबर डी हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से बच्चे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम। वन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड, वन सेकंड, ऑप्शन नंबर ए है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड स्टर्नम। बी है द RBCs ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओनली। सी द thoracic cavities in anatomy. ऑप्शन नंबर सी है द thoracic cavity is anatomically an airtight chamber। और डी है healthy man can inspire approximately 500 ml of air per minute। What do you think बच्चे? ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात करूँ which is contraction of internal intercostal muscles, तो बच्चे इंटरनल देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स डेफिनेटली जब कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर की तरफ फॉर एग्जाम्पल देखो अंदर की तरफ लेट्स से इमेजिन करो कि मेरे पास ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है। ये अंदर की तरफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं और बाहर की तरफ इनके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है जो मैं ग्रीन से बना रही है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अभी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में प्याज के छिलके की तरह इमेजिन करो, लाइक देयर इज
लेयर्स ऑफ एन अनियन पील, ठीक है। तो जब आप अनियन को छीलते हो तो सबसे एक बाहर लेयर होती है, उसको आप इमेजिन करो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, फिर अंदर की तरफ वाली लेयर्स जो होती हैं उन्हें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो जब आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो बाहर की तरफ दे मूव आउटवर्ड्स एंड देयरबाय लिफ्टिंग द रिब्स एंड स्टर्नम। बट यहाँ पे बात हो रही है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो रेड से मैंने डिनोट किए। तो बच्चे जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट इनवर्ड्स। तो अगर वो और अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दे विल नॉट लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। इनफैक्ट दे विल पुल द रिब्स एंड स्टर्नम टुवर्ड्स देम, अंदर की तरफ और उन्हें पुल करेंगे, दे विल नॉट लिफ्ट देम अप, दे विल पुल देम टुगेदर, ठीक है। अंदर की तरफ आप पुल और करेंगे, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। बी की अगर मैं बात करूँ, आरबीसीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओनली, दैट्स ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज आरबीसीज जो हैं, आई डू अग्री कि जो 97% ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड वाया आरबीसीज ऑफ कोर्स। बट ऐसा थोड़ी है कि CO2 का ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। ऑफ कोर्स 20 से 25% जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है दैट हैपेंस वाया आरबीसीज, राइट। CO2 का 20 से 25% जो ट्रांसपोर्ट है दैट हैपेंस वाया आरबीसीज में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके। और इनफैक्ट जो रिमेनिंग मेजॉरिटी 70% ऑफ CO2 है जो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, बाइकार्बोनेट बनता भी तो आरबीसीज में ही है ना। तो या बी भी गलत है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी की बात करूँ तो थोरैसिक कैविटी इज एन एनाटॉमिकली एन एयरटाइट चेंबर। थोरैसिक कैविटी जो होती है, थोरैसिक कैविटी किससे बनी होती है? ऑन द वेंट्रल साइड बच्चे यू हैव द स्टर्नम, ऑन द लैटरल साइड्स व्हाट डू यू हैव? ऑन द लैटरल साइड्स यू हैव द रिब्स, ठीक है। और डॉर्सल साइड पे अगर मैं बात करूँ, डॉर्सल साइड्स पे हमारे पास होता है VC विच इज द वर्टेब्रल कॉलम, और नीचे ऑन द लोअर साइड यू हैव द डोम शेप डायफ्राम, ठीक है। तो आप पूरा देखोगे तो एक कंटेनर की तरह कस के बंद हो जाता है, पूरा एक चेंबर, एयर टाइट चेंबर बन जाता है, ठीक है, एकदम जहाँ पे आप कुछ पास नहीं हो सकता, ठीक है। सो थोरैसिक कैविटी एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चेंबर है, दिस इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट विच इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी इफ यू आर थरो विद योर एनसीईआरटी, ठीक है। लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, वी हैव ऑलरेडी गॉट द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ लास्ट वाले स्टेटमेंट की, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अप्रॉक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर पर मिनट। एक हेल्दी आदमी जो होता है वो 500 ml एयर इनहेल करता है पर मिनट, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे हाँ मैम था तो टाइडल वॉल्यूम, that's where precision of concept actually works, healthy man definitely inspire करता है 500 ml of air per breath not per minute, ठीक है। पर मिनट की अगर मैं बात करूँ विच इज बेसिकली मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है 6,000 से 8,000 ml, 6,000 से 8,000 ml। वाई डू आई से सो? बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है बच्चे टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो हम सबको पता है कि हेल्दी ह्यूमन जो होता है, अगर मैं पूछूँ ना बच्चों से, इनफैक्ट अगर मैं जल्दी मैं पूछती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल टेल मी द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, बच्चे बोलते 72 टाइम्स पर मिनट। Bacha, that's the heart rate. That's how, how many times a heart beats, per minute. That's not the respiratory rate. Respiratory rate actually mentioned by NCERT में कि a normal healthy adult on an average breathes 12 to 16 times per minute, right? So 12 से 16 बार आप सांसें लेते हो एक मिनट में, right? So a tidal volume, और हर सांस में आप 500 ml एयर को ले रहे हो। 500 ml air is, the volume of air that you inhale per breath. 500 ml पर ब्रेथ, हर सांस पे 500 ml एयर ले रहे हो। और एक मिनट में सांस कितनी ले रहे हो? एक मिनट में आप सांस ले रहे हो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 ब्रेथ्स ले रहे हो, ठीक है। 12 से 16 बार आप सांस ले रहे हो पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ से देखो ब्रेथ से ब्रेथ कट गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करूँ 500 इंटू 12 अगर आप करोगे, ठीक है, अगर आप 500 इंटू 12 करोगे यू विल गेट 6,000 से लेके 500 इंटू 16 करोगे दैट इज 8,000, राइट। तो 6,000 से 8,000 ml, 6,000 से 8,000 ml, और अब यहाँ पे देखो ml पर मिनट, ठीक है। 6,000 से 8,000 ml जो एयर है आप उसे इनहेल या एक्सहेल करते हो पर मिनट, दिस इज रेफर टू एज मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। आई होप दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच वी डिडंट डिस्कस एंड नाउ इट्स clear through the questions, ठीक है। इतना सबको समझ आया? Now we move on to the next one. The next is question number 47. Question number 47 बोलता है after taking a long deep breath we do not respire from, one second, okay, question number 47 is an interesting question. Question number 47 क्या बोलता है? Question number 47 is says after taking a long deep breath we do not respire for some seconds due to A, more CO2 in blood, B, more oxygen in blood, C, less CO2 in blood, or is it D, or less oxygen in blood, ठीक है। But before I give you the answer I would want all of you to have an explanation on this and then deduce the correct answer on your own, ठीक है। अब देखो जब हम बोलते हैं when we have taken a long deep breath, जब हम ऐसे बहुत गहरी सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम एक लंबी सांस लेते हैं तो उसमें जब हमने एक लंबी सांस ली मतलब हमने बहुत ज़्यादा एयर को इनहेल किया। अब एयर जो हमने इनहेल किया
उसमें अच्छा खासा ऑक्सीजन कंटेंट होगा। तो बेसिकली जब हम इतनी डीप ब्रीथ लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो बेसिकली वी हैव सैचुरेटेड आवर ब्लड विद ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड के पास अच्छा खासा ऑक्सीजन पहुंच चुका है, ठीक है। बिकॉज ब्लड के पास अच्छा वी सैचुरेटेड आवर ब्लड विद ऑक्सीजन, अब बिकॉज वी सैचुरेटेड आवर ब्लड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में अच्छा, ब्लड में अच्छा खासा ऑक्सीजन है, दैट विल लोअर डाउन द CO2 लेवल्स, CO2 के जो लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब बिकॉज CO2 के लेवल्स कम हो जाएंगे, दैट कहीं ना कहीं वो हैम्पर कर देता है हमारे रेस्पिरेटरी रेट को, ठीक है। तो आप बोलोगे रेस्पिरेटरी रेट कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो आप बोलोगे क्यों? देखो क्यों हो जाती है ना, विच इज वाई, तभी तो लिखा है कि यहाँ पे वी डू नॉट रिस्पायर फॉर सम सेकंड। वो क्यों होता है? देखो हम सबको पता है, वी हैव द मेडुला, मेडुला में हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी सेंटर वी हैव सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स विच आर वेरी सेंसिटिव टू हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, विच आर सेंसिटिव टू हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये सब हमने क्रैश कोर्स में पढ़ा है, सो डू नॉट इवन प्रिटेंड लाइक यू डोंट नो दिस, ठीक है। तो दे डिटेक्ट हाई CO2 एंड हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और हम सब ने पता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में कि जो ऑक्सीजन का रोल होता है ना, इट्स ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑक्सीजन एज सच कोई रोल ही नहीं है उसका, मतलब इतना कोई मेजर रोल नहीं है, मेजरली इट्स ड्रिवन बाय CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ब्लड में जैसे ही CO2 का लेवल्स बढ़ता है ना, ठीक है, सो जैसे जैसे CO2 के लेवल्स राइज होते हैं ब्लड में, तो जो हमारे ब्रेन के जो सेंटर्स है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं दे गेट ट्रिगर्ड विद द हेल्प विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, ठीक है। अब बिकॉज हमने यहाँ पे डीप इनहेल किया है, ठीक है, हमने डीप इनहेल किया है, तो हमने बहुत सारा ऑक्सीजन इनहेल कर लिया, तो ब्लड में बेसिकली ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है, ठीक है। जब CO2 का अमाउंट कम है ना, तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर जाता नहीं है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पे, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पे इतना ट्रिगर जाता नहीं होता। हाँ, ऑक्सीजन कंटेंट तो कम, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तब एक काम करेंगे, तब गहरी गहरी सांस ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, दिस इज द रीजन बिकॉज लेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द ब्लड आफ्टर अ ब्रेथ, तो जो सिग्नल होता है, द सिग्नल ऑफ ब्रीदिंग, वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाता है, एंड हेंस इट अलाउज यू टू होल्ड। तभी आप सांस रोक भी पाते हो, जब आप ऐसे गहरी सांस लेते हो, तो आप कुछ टाइम के लिए अपनी सांस रोक क्यों पाते हैं? बिकॉज ये ब्लड हैज बीन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। अब ब्लड सैचुरेट हो गया ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है, ठीक है। CO2 कम है तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है ना, वो कहीं एक तरीके से ट्रिगर नहीं हो पाते, एक तरीके से स्टिम्युलेट नहीं हो पाते, तो रेस्पिरेटरी रेट ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, रेस्पिरेटरी ड्राइव कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो ठीक है, आई होप दैट मेड सेंस, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रेट कहीं ना कहीं रिड्यूस क्यों हो जाती है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल्स हैं वो कम हो गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के जो हाई लेवल्स है वही कहीं ना कहीं एक्टिवेट करते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को, और वो मैसेज करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और वो कराता है फिर इंस्पिरेशन, ठीक है। तो दैट्स हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स, राइट। तो बिकॉज यहाँ पे लेस CO2 है in the blood, there is less CO2 in the blood, ठीक है, which is why we do not respire for some seconds, ठीक है, because after you take a long deep breath, ठीक है, there is more oxygen in the blood, after you take a long deep breath, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है ब्लड में, इसलिए हम ब्रीथ नहीं करते, नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन का तो ऐसा कोई इतना मेजर रोल है ही नहीं, ठीक है। मेनली इट्स बिकॉज CO2 कम हो जाता है, CO2 के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं, एंड हेंस रेस्पिरेटरी जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है, दे डू नॉट गेट ट्रिगर्ड, राइट। So option number C here becomes the correct answer. Let's CO2 in the blood. I hope this is clear to everybody. Let's move on to the next question. The next question is question number 48. Okay. All right. Question number 48 बोलता है, a large proportion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by the body tissues. This oxygen A acts as a reserve during muscular exercise. B raises the partial pressure of carbon dioxide of blood to 75 mmHg. C is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96. D helps in releasing more oxygen to epithelial tissue. ठीक है। 48 की बच्चे अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है लार्ज पोर्शन, वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 48 बच्चे बोलता है अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड, ठीक है। एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन, ठीक है, एक बहुत मेजर चंक जो होता है ऑक्सीजन का, वो अनयूज रह जाता है ह्यूमन ब्लड में इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यूज, यानी एक पल को अपने बॉडी के जो टिश्यूज है, बॉडी को अगर आपने एक पल को ऑक्सीजन दे भी दिया, उसके बाद भी काफ़ी सारा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में अनयूज ही रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन भी थी NCERT में कि एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ब्लड ओनली डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। हमें पता है जब एकदम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, और इस 20 ml में से सिर्फ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे वो सिर्फ 5 ml डिलीवर करता है टिश्यूज को, सिर्फ 5 ml ही पहुंचता है टिश्यूज तक, ठीक है। 5 ml पहुंचा, तो यानी 20 में से अगर 5 इसने टिश्यूज को दे दिया, तो इसके पास अभी भी कितना है, इसके पास अभी भी मेजर चंक है 15 ml, तो इसी के पास है 20 में से अगर इसने अपना 25% यानी 55 ml, 20 का अगर 25% करोगे तो 5 ml हो गया, ठीक है। 20 का अगर आप 25% करोगे बच्चा, आई होप दिस इज बेसिक मैथ्स, यू ऑल नो, 20 का 25% यार, ठीक है, कितना हो जाएगा, 21 सा 25 सा
5 ones are 5 fives are, हाँ 5 fives are 25, 5%. What do you think? What if 15% or 5%? What do you think? 1 second. ठीक है, तो बच्चा आई होप दिस इज मेकिंग सेंस राइट। 20 का अगर आप देखोगे 20 ml इज कितना, देखो 20 ml का 5% कितना होता है, 20 ml का 15% कितना होता है, 25%, सॉरी भैया। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर आप देखो 20 ml का 20 ml का अगर मैं बात करूँ 20 ml फोकस ml का 15%, अगर मैं बात करूँ बच्चे 20 ml का 25% कितना होता है, 25% कितना होता है, ठीक है। 20 ml का 25% अगर आप निकालोगे तो 21 सा 20, 25 सा 25, 5 सा 5, 5 कितने सा 5 सा। तो अगर मैं देखो 20 ml का 25% कितना होता है, 5 ml, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं ये 25% जो ब्लड है वो टिश्यूज़ को दे रहा है, 25% ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ को दे रहा है। बट जो रिमेनिंग 75% है जो कि है 15 ml, वो तो इसी के पास रह रहा है। एंड दिस लार्ज पोर्शन ये अनयूज ही रह जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से वापस एल्वियोलाई में जाता है। तो ये अनयूज रह रहा है भी ब्लड क्यों, मतलब इसका क्या करेगा ब्लड, ये क्या करेगा। तो दैट विल एक्चुअली एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइजेस। तो ऑन डेज अभी देखो नॉर्मल जब आप नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में हो, जब आपको ऐसे इंटेंस फिजिकल लेबर नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बॉडी को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मान लो सडनली अचानक आपके सामने लेट्स से एक शेर आ जाता है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो अगेन, या कोई भी एडवर्स कंडीशन है वेयर यू सडनली फील द अर्ज टू रन फ्रॉम दैट सिचुएशन, आपको अचानक से भागना है। अब अचानक से ऐसा थोड़ी होगा कि बॉडी में अचानक से ऑक्सीजन प्रकट हो जाएगी। तो बॉडी इज ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अचानक से भागना पड़ा, ठीक है। इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, अब बहुत जल्दी जल्दी मेरे को ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा टू गिव एनर्जी टू द मसल सेल्स, ठीक है। उस केस में बच्चा क्या होगा, मुझे बहुत जल्दी जल्दी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, और फिर ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ, यहीं से जो ब्लड में हमने रिजर्व कर रखा था, ठीक है। अचानक से कहीं प्रकट थोड़ी हो जाएगा, अचानक से ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि अगर हम टाइडल वॉल्यूम, चलो हम बहुत ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज कर दें, बट उस सब के लिए भी टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं हम एक रिजर्व करते हैं, जैसे कि यूजुअली भी हम लोग भी कोविड के टाइम में सब ने अपनी अपनी कुछ सेविंग्स कर रखी थी, जिन लोगों ने कर रखी थी दे कुड ईजिली पास दैट पीरियड, और जिन्हें कोई सेविंग नहीं कर रखी थी, जो एकदम योलो लाइफस्टाइल जीते, यू ओनली लिव वंस, हैव नो सेविंग इन द बैंक अकाउंट्स, ठीक है। तो दे वर सफरिंग ऑब्वियसली, ठीक है। तो विच इज़ वाई ऐसे बॉडी भी करता है, बॉडी भी कुछ ऑक्सीजन को सेव करता है, और ये जो ऑक्सीजन है दिस एक्चुअली एक्ट्स एज रिजर्व मटेरियल, ये रिजर्व की तरह काम करती है ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटीज, ठीक है। तो सो ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रेज कर देती है, नॉट एट ऑल। इज इनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एट 96, नॉट एट ऑल। हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन टू एपिथेलियल टिश्यूज, नॉट एट ऑल। ऑप्शन नंबर ए हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is what which is basically one second, just a moment everybody. All right, I'm so sorry, 1 second. Now we move on to the next question, which is question number 49, and here's what question number 49 says. Question number 49 बोलता है which of the following is true for CO2 concentration? इनमें से कौन सी बात सच है CO2 concentration के लिए? Just a moment. Is it A, more in alveolar air and 1 second यार, 1 minute. Alright, now let's move on to the next question. The next question is question number 49, and here's what it says. Question number 49 बोलता है which of the following is true for CO2 concentration? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है CO2 की concentration के लिए? A, more in alveolar air than in expired air. B है more in expired air than in alveolar air. C है more in inspired air than in alveolar air. Or is it option number D, more in inspired air than in expired air? What do you think? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है for CO2 concentration? CO2 की concentration कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ कहाँ होती है? देखो, बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, बात पार्शियल प्रेशर की नहीं हो रही है, सो लिसन टू मी क्लोजली, ठीक है। एनसीईआरटी में वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टिक विद मी ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन। देखो, CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना इंस्पायर्ड एयर में, जो एयर आप इनहेल करते हो, ठीक है, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है CO2 की वो बहुत कम होती है, बिकॉज यूजुअली आप प्रॉपर एयर इनहेल कर रहे हो, ठीक है। तो एयर में आपको होता है CO2 की परसेंटेज बहुत कम होती है, सो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है CO2 की इंस्पायर्ड एयर में वो बहुत कम होती है, 0.03% के आसपास ही, 0.03 0.04% के आसपास ही होती है, बिकॉज दिस इज दी नॉर्मल एटमोस्फेरिक एयर दैट यू आर इनहेलिंग, राइट। तो इंस्पायर्ड एयर में तो इतनी होती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये एयर पहुंचती है कहाँ पे, हमारे एल्वियोलाई में पहुंचती है, ठीक है। एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है, राइट। एल्वियोलाई में एक्चुअली गैस एक्सचेंज होता है। तो एक बात बता, एल्वियोलाई में ये इंस्पायर्ड एयर ही तो पहुंच रही है, तो बेसिकली यहाँ पे एल्वियोलाई में जैसे एयर का कॉन्सेंट्रेशन होगा, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो होगा 0.03 से 0.04%। बट हमें बताया कि एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है, और गैस एक्सचेंज के दौरान देखो ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो एल्वियोलाई से
पल्मोनरी कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाता है, बट जो CO2 है, CO2 बेसिकली जो है वो पल्मोनरी कैपिलरी से एल्विलाई में डिफ्यूज होता है, राइट, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। और जब ये CO2 जो है, जो ये जब CO2 एल्विलाई में डिफ्यूज होता है तो इट रेजेस द CO2 कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जब CO2 अब आप डिफ्यूज कर रहे हो एल्विलाई में, तो अब यहाँ पे CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, और एल्विलाई में जो CO2 होती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के कितनी हो जाती है, 5 से 6%, 5 से 6% हो जाती है, ठीक है। ये तो बात रही हमारी एल्विलार एयर और इंस्पायर्ड एयर की। एल्विलार एयर भी हो गया हमारा, इंस्पायर्ड एयर भी हमने डिस्कस कर लिया। एक्सपायर एयर और एक बार डिस्कस कर लो, ठीक है। अब बच्चे यहाँ से हुआ हमारा, ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब देखो एल्विलार तक हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एक्सपिरेशन के। एक्सपिरेशन के दौरान क्या होगा, मैं इस एयर को एक्सेल आउट करूंगी, मैं इस एयर को एक्सेल आउट करूंगी। तो आप बोलोगे मैम एक्सेल आउट तो हम एल्विलार में जो एयर प्रेजेंट है उसे ही करेंगे, दैट्स ट्रू। बट आप याद रखो कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि हम जितनी भी एयर इनहेल या एक्सेल करते हैं वो सारी की सारी एल्विलाई में पहुंच जाती है, नहीं। मैंने बोला था अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, एक बहुत बड़ा चंक जो है एयर का, वो हमारी नेजल कैविटी से लेके हमारे ट्रेकिया से लेके ब्रोंकाई से लेके ब्रोंक्यूल्स में भी प्रेजेंट होती है, राइट। ऐसी थोड़ी यहाँ पे वैक्यूम की कंडीशन है, यहाँ पे भी एयर प्रेजेंट होगी ना, और ये जो एयर है ये कभी एल्विलाई तक पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। एंड दिस वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द एयरवेज, जो एयरवेज में ही रह जाती है, एंड इट डज नॉट रीच द एल्विलाई, इसको हम क्या बोलते हैं, डेड स्पेस एयर बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप एक्सपायर करोगे, कॉमन सेंस की बात बताओ, जब आप एक्सपायर करोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ एल्विलाई है, ठीक है, एल्विलाई से जब आप एक्सपायर कर रहे हो तो जाएगी तो वो इसी पाथवे से होके, जाएगी तो इसी पाथवे से होके, यानी जो एक्सपायर्ड एयर है, ठीक है, जो आप एक्सपायर कर रहे हो वो कॉम्बिनेशन है एक तो एल्विलार एयर का जिसमें कॉन्सेंट्रेशन थी 5 से 6% CO2 की, एंड इट्स ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डेड स्पेस एयर। डेड स्पेस एयर वो एयर जो कभी पहुंची ही नहीं एल्विलाई तक, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपायर्ड एयर है इट्स अ मिक्सचर ऑफ दिस एल्विलार एयर एज वेल एज दिस डेड स्पेस एयर, राइट। सो अब क्या होता है ना, ये जो एल्विलार एयर है जिसमें अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन था CO2 का 5 से 6%, कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो जाती है, इट गेट्स डाइल्यूटेड बाय द डेड स्पेस एयर, बिकॉज डेड स्पेस एयर जो है इसमें अभी भी अच्छा खासा ऑक्सीजन का अमाउंट रहता है, राइट, बिकॉज ये तो कभी पहुंची ही नहीं ऑक्सीजनेशन के लिए, इसमें ऑक्सीजन कॉन्टेंट हाई रहता है, ठीक है। तो जब हमारे CO2 रिच एयर एल्विलार एयर मिक्स होती है इस एल्विलार एयर, ठीक है, तो बच्चे जब हमारी एल्विलार एयर एक्चुअली में मिक्स होती है किससे, इस डेड स्पेस एयर से, तो क्या होता है, जब डेड स्पेस एयर से मिक्स होती है तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है, यानी पार्शियल प्रेशर जो होता है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होती है CO2 की वो कहीं ना कहीं घट जाती है, घट के कितनी हो जाती है, 4% हो जाती है, घट के 4%। तो अब क्या आप मुझे एक्चुअली हम बता सकते हो कि अब नाउ दैट यू नो द वैल्यूज एंड नाउ दैट यू नो द एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, नाउ कैन यू डिड्यूस द कंक्लूजन्स, ऑफ कोर्स यू कैन, ठीक है। तो अब मुझे बताना जरा सबसे ज़्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होती है, इट्स मोर इन एल्विलार एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। एल्विलार एयर में आप देखो 5 से 6% होती है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें घट के कितनी हो जाती है, घट के कितनी हो जाती है, उसमें एक्सपायर्ड एयर में घट के 4% के आसपास हो जाती है, ठीक है। मोर इन एक्सपायर्ड एयर देन इन एल्विलार एयर, एक्सपायर्ड एयर में ज़्यादा होती है एल्विलार एयर के कंपैरिजन में, नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। इट्स मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन इन एल्विलार एयर, नहीं, इंस्पायर्ड एयर जो आप इनहेल कर रहे हो उसमें तो 0.03 से 0.04% के आसपास होती है, 0.04 भी मान लो तो स्टिल इट इज़ वेरी लेस देन एल्विलार एयर, तो मोर तो नहीं होती है इंस्पायर्ड एयर में कॉन्सेंट्रेशन, मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन इंस्पायर्ड एयर में ज़्यादा होती है, नहीं, इंस्पायर्ड एयर में कम होती है एक्सपायर्ड एयर से, ठीक है। सो सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now you know the reason why, ठीक है। We move on to the last question. The last question is question number 50. Question number 50 बोलता है during rest the metabolic needs of the body are at their minimum. Which of the following is indicative of the situation? A. Rate of breathing. B. Oxygen intake and CO2 output. B. Pulse rate. Or D. All of these. What do you think बच्चे? During rest, जब रेस्ट की कंडीशन होती है, जब आप आराम कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी आर एट द मिनिमम, जो बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक नीड्स होती है, राइट, जब आप रेस्ट की कंडीशन के दौरान, यू नो, व्हेन यू आर एट रेस्ट, द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी आर एट द मिनिमम, जो मेटाबॉलिक नीड्स होती है बॉडी की वो अपने मिनिमम पे होती है, राइट, बिकॉज आप एक्टिवली कोई फिजिकल, once again let's read this entire question once again, this is the, all right, now let's discuss question number 50. Question number 50 बोलता है during rest the metabolic needs of the body are at the minimum. Once again, question number 50 says the during all right, now we move on to the next question, which is question number 50. Question number 50 बोलता है during rest the metabolic needs of the body are at their minimum. Which of the following is indicative of this situation? A. Rate of breathing. B. Oxygen intake and CO2 output. C. Pulse rate. Or D. All of these. What do you think बच्चे? ठीक है, रेस्ट के दौरान जब रेस्ट की कंडीशन होती है, जो मेटाबॉलिक नीड्स होती है इंसान की वो एकदम मिनिमम पे होती है, मतलब एज सच कोई मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिवली अब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था, मतलब मेटाबॉलिक नीड्स एकदम स्लो हो जाती हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा कोई सडनली एनर्जी की डिमांड है नहीं, बिकॉज आप कोई बहुत इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। तो इनमें इस सिचुएशन को कि द फैक्ट दैट यू नो यू आर एट रेस्ट, यू नो यू नॉट रियली इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सी सिचुएशन इस चीज़ को दर्शाती है और इंडिकेट करती है? वंस अगेन आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन, फोकस।
ड्यूरिंग रेस्ट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी आर एट द मिनिमम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ द सिचुएशन। तो जब आप एकदम नॉर्मल स्टेट में होते हो व्हेन यू आर एट रेस्ट, मतलब रेस्ट का मतलब ये नहीं आप आराम कर रहे हो, यू नो फॉर एग्जांपल व्हेन यू नॉर्मली वॉकिंग इनहेलिंग एक्सहेलिंग, ठीक है, आप सब एकदम नॉर्मल स्टेट में हो, आपको इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपकी जो मेटाबॉलिक नीड्स होती है वो काफ़ी कम हो जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफकोर्स आप कोई रश नहीं, मतलब यू नो यू नॉट रनिंग जंपिंग, यू नो इन्वॉल्व इन एनी इंटेंस वर्कआउट और सच किसी भी ऐसे बहुत फिजिकल लेवल में इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपको सडनली बहुत ज़्यादा एनर्जी लगे नहीं, तो जो सारे पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, आराम आराम से सब कुछ चल रहा होता है अपने बेयर मिनिमम पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ दिस सिचुएशन, इनमें से कौन सी चीज़ ये इस कंडीशन को दर्शाती है कि यू नो जो मेटाबॉलिक स्टेट है वो एकदम मिनिमम पे है एंड यू नो बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव वर्कआउट की कंडीशन में नहीं है। तो मुझे आप बता सकते हो रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, क्या रेट ऑफ ब्रीदिंग इस चीज़ को दर्शाता है? व्हाट डू यू थिंक, रेट ऑफ ब्रीदिंग इस चीज़ को दर्शाता है? यस करेक्ट, रेट ऑफ ब्रीदिंग दर्शाता है। कैसे दर्शाएगा? हाँ, रेट ऑफ ब्रीदिंग काफ़ी स्लो हो जाता है, राइट, यू नो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है बाय, बिकॉज देखो अब आप क्या है, यू नो यू आर नॉट रियली यू नो इन्वॉल्व इन एनी इंटेंस वर्कआउट एज सच, आप बहुत कोई इंटेंस एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड हो, बिकॉज एनर्जी की डिमांड नहीं है, ठीक है, तो एनर्जी की डिमांड अगर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे बहुत एक्टिव मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, यानी बहुत एक्टिव ब्रेक डाउन नहीं होगा ग्लूकोज का या फैट्स का टू जनरेट एनर्जी, तो बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है कहीं ना कहीं, कि ऑक्सीजन टिश्यूज या सेल्स को भी कम ऑक्सीजन चाहिए, इतना ज़्यादा इतनी स्पीड अप इतनी हाई रेट में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, ठीक है। सो अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी रेट यानी रेट ऑफ ब्रीदिंग दैट ऑल्सो डिक्रीजेज, ठीक है, स्लो ब्रीदिंग रेट, आराम आराम से आप सांसें ले रहे होते हो, ठीक है, स्लो ब्रीदिंग रेट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन इंटेक एंड CO2 आउटपुट, हाँ ये भी इंडिकेट करता है सिचुएशन को, क्यों? क्योंकि देखो हम सबको पता है, जैसे कि बिकॉज मैंने अभी बताया, बिकॉज सेल्स इतने मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, तो सेल्स को ऑक्सीजन भी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, राइट, सो देयर इज लेस ऑक्सीजन विच इज बीइंग कंज्यूम, तो लेस ऑक्सीजन इंटेक होता है। अब बिकॉज ऑक्सीजन ही कम ले रहा है सेल्स, ठीक है, तो मतलब मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो CO2 भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, तो ऑक्सीजन इंटेक और CO2 का आउटपुट वो भी काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है, देयर इज लेस ऑक्सीजन बिकॉज लेस ऑक्सीजन इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड हेंस इन टर्न लेस CO2 इज बीइंग प्रोड्यूस, राइट। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये ऑक्सीजन इनटेक और CO2 आउटपुट की, ये भी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। दिस ऑल्सो डिक्रीजेज अ बिट, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दिस सिचुएशन दैट द बॉडी इज यू नो एट मिनिमम मेटाबॉलिक नीड्स मिनिमम पे आपकी। पल्स रेट की अगर मैं बात करूँ, देखो हार्ट रेट, अब बिकॉज ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं सेल्स को इतना, यू नो इतनी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, बिकॉज उनके पास ठीक ठाक ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन इतना जल्दी जल्दी कंज्यूम भी नहीं हो रहा है, तो देखो जो ब्लड हार्ट है, हार्ट पंप करता है ब्लड, और उस ब्लड के थ्रू ही तो हम इस ऑक्सीजन को भेजते थे, तो बिकॉज अब सेल्स और टिश्यूज जो है उन्हें इतना एक्टिवली ऑक्सीजन डिमांड है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जो हार्ट रेट है ना वो भी डिक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट बेसिकली पल्स रेट, राइट, हार्ट रेट या पल्स रेट को बोलो तो अभी सेम ही समझो, हार्ट रेट जो होती है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है, एंड दिस reflects, what does this reflect? This decreased heart rate reflects that there is reduced need for oxygen। तो ये सारी कंडीशन इस चीज़ को दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सेल्स को अभी इतनी नीड नहीं है ऑक्सीजन की, बिकॉज बॉडी एज सच कोई बहुत मेटाबॉलिकली इंटेंस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस आर एक्चुअली indicative of the fact they're all reflecting that there's reduced need for oxygen की अभी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है बॉडी में। So all of these situations are indicating that the metabolic needs है बॉडी की वो minimum पे है। So option number D becomes the correct answer here. We move on to the next question. The next question is question number 51 and here's what it says. Question number 51 बोलता है consider the following 4 statements and select the correct option stating which ones are true and which ones are false। ठीक है, 4 statements दे रखी हैं 1, 2, 3 and 4, आपको बताना है इनमें से कौन सी statement correct है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करो, ए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन अकर्स ऑन एल्वेलर सर्फेस, बी ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज द गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, सी है कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद हीमोग्लोबिन, और डी है हमारा अर्थवर्म डिस्पायर्स थ्रू पैरापोडिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू गेस विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। ठीक है, तो अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात करूँ, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन अकर्स ऑन एल्वेलर सर्फेस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वेलाई की सर्फेस पे बनता है, ऑफ कोर्स दिस हैपेंस एट द एल्वेलर सर्फेस, राइट, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, ठीक है, HbO2 की फॉर्मेशन ही कहाँ होती है, ये इनका जो एसोसिएशन होता है, इनका मिलाप कहाँ होता है, एल्वेलाई की सर्फेस पे ही होता है। तो ए तो ट्रू है हमारी, तो पहली स्टेटमेंट तो इज एब्सोल्युटली ट्रू, सो लेट मी पुट इट ट्रू हियर। ठीक है, एक ट्रू का सिंबल लगा दूं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले की, ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, गैसेस एक्सचेंज के दौरान बच्चे जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज करती हैं हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में। हाँ ठीक है, जहाँ पे गैसेस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में ही डिफ्यूज करती हैं गैसेस, चाहे वो CO2 हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, जैसे एक इंस्टेंस पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो एल्वेलाई में होता है वो ज़्यादा होता है 104, और पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का एक्चुअली में इस वीनस ब्लड में होता है, जो हमारे बॉडी से आ रहा होता है, ठीक है, उसमें कितना होता है 40 mmHg। ठीक है, तभी तो ऑक्सीजन जो होता है वो हाई से लो वाले रीजन में डिफ्यूज करता है। ठीक है, एंड दैट्स हाउ ऑक्सीजनेशन टेक्स प्लेस, राइट। तो ये भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट।
अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टेटमेंट की, कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हीमोग्लोबिन की मदद से, ऑफकोर्स कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्चुअली में बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, और क्या बनता है HbCO2। क्या बनता है बच्चे, HbCO2 बनता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर सकता? 100% बाइंड कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद हीमोग्लोबिन, इट डेफिनेटली कैन ट्रांसपोर्ट इट। वंस अगेन, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद हीमोग्लोबिन, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को आप बिल्कुल ट्रांसपोर्ट कर सकते हो बच्चे हीमोग्लोबिन के साथ, कर सकते हो कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड कैन डेफिनेटली बी ट्रांसपोर्टेड विद हीमोग्लोबिन, ऑफकोर्स करता भी तो है यार, आप कैसे बात कर रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्चुअली में बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, और बनाता है HbCO2 कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। सो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ द फोर्थ स्टेटमेंट की, फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है अर्थवॉर्म्स रिस्पायर थ्रू पैरापोडिया इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड ऑफ कोर्स यू नो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, एनालिस्ट जो होते हैं, जो हमने क्रैश कोर्स भी किया था और एनसीईआरटी में लिखा भी है कि अर्थवॉर्म्स रिस्पायर यूजिंग द मॉइस्ट क्यूटिकल, राइट, दे रिस्पायर यूजिंग द मॉइस्ट क्यूटिकल। तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उसकी मदद से वो रिस्पायर करते हैं। और रही बात पैरापोडिया की, तो ये वर्ड आपको सुना सुना नहीं लग रहा, कहाँ सुना हुआ है बताओ, कौन टेल मी। एनसीईआरटी में है ये वर्ड, इट्स इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में याद है जब हम फाइलम एनालिडा की ही डिस्कस करते हैं, फाइलम एनालिडा में कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सीन इन सम एनालिड्स, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल था नेरीज, ठीक है, सैंडवर्म जिसको बोलते हैं नेरीज, ठीक है, ड्रैगवर्म भी बोलते हैं इसको। नेरीज जो होता है उसमें एक्चुअली पैरापोडिया नजर आते हैं। दीस पैरापोडिया आर स्ट्रक्चर्स विच आर used for the purpose of locomotion, ठीक है। They are seen in some annelids like Nereis is one example NCERT mentions, right? So earthworm respire करते हैं पैरापोडिया के थ्रू नहीं, earthworm में तो पैरापोडिया होते ही नहीं है, प्लस पैरापोडिया इज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नॉट अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एज सच। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। Do now we choose the answer true true false false, and that makes option number D the correct answer, right? I hope this is clear to everybody. So we shall move on to the next one. Now the next question is question number 52, and here's what question number 52 says. Question number 52 बोलता है besides RBC blood plasma also carries oxygen in solution. The percentage is A 3 to 9%, B 1 to 2%, C 3 to 6%, or D 2 to 3%. ठीक है, besides RBC blood plasma also carries oxygen in solution. The percentage is, once again focus, बिसाइड आरबीसी ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन इन सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है आरबीसी जो है, ठीक है, वंस अगेन ओके। अब क्वेश्चन बोलता है बच्चा कि ब्लड प्लाज्मा के अलावा, जैसे प्लाज्मा में तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन कैरी होता है, ठीक है, आरबीसी के once again अब बच्चा क्वेश्चन बोलता है आरबीसी के अलावा ब्लड प्लाज्मा भी है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। आरबीसी के अलावा ब्लड प्लाज्मा भी है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑफकोर्स हमें पता है 97% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके आरबीसी के फॉर्म में ही, आरबीसी में ही ट्रैवल करती है। बट जो रिमेनिंग कितनी परसेंट है, रिमेनिंग कितना परसेंट है जो प्लाज्मा में भी डिजोल्व होकर ट्रैवल करती है। तो 97% अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड करके आरबीसी में ट्रैवल कर रही है, तो रिमेनिंग 3% is dissolved in the plasma, right? 3%. तो 2 से 3%, ऑप्शन नंबर डी becomes the correct answer. तो besides RBC, blood plasma also carries oxygen. blood plasma भी ऑक्सीजन को कैरी करता है, और blood plasma में इसका परसेंटेज कितना होता है? 3%, 2 से 3%, ठीक है। एनसीईआरटी exactly 3% बोलती है, ठीक है। So ऑप्शन नंबर डी here becomes the correct answer. We move on to the next question. The next question is question number 53. Question number 53 बोलता है which of the following statements is true about RBCs in humans? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है about RBCs in human beings? A, they carry about 20 से 25% of CO2. B, they transport 99.5% of oxygen. C, they transport about 80% oxygen. Once again, option number C बोलता है they transport about 80% oxygen only, and the rest 20% of it is transported in dissolved state in blood plasma. D है they do not carry CO2 at all, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच है आरबीसीज के बारे में? A, they carry about 20 से 25% CO2. That's true. जो एक्चुअली में आरबीसीज होती हैं वो 20 से 25% CO2 को कैरी करती हैं। दैट्स ट्रू। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑक्सीजन। दैट्स फॉल्स। 97% ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, नॉट 99.5, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली, एंड द रेस्ट 20% इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा। ये भी गलत है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो आरबीसीज होती हैं दे कैरी अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन, और जो रिमेनिंग 3% होता है, नॉट 20, रिमेनिंग 3% इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, ठीक है। और दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल। ये तो गलत है ना, 20 से 25% CO2 कैरी करती हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, राइट। ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर हियर।
I hope that made perfect sense to everybody. Let's move on to the next question. The next question is question number 54. Question number 54 बोलता है the carbon dioxide is transported via blood to lungs, mostly A, in combination with hemoglobin, only B, in dissolved in blood plasma, C, in the form of bicarbonates, or D, as carbaminohemoglobin. Question number 54 है carbon dioxide जो होता है that's transported via blood, वो blood के थ्रू ही एक्चुअली में लंग्स में जाता है, ब्लड के थ्रू ही लंग्स में जाता है, मोस्टली किस फॉर्म में तो बच्चे आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू मेक अ नोट ऑफ दिस बिकॉज नॉट मेनी एक्चुअली आर वेरी वेल वर्स्ड विद दिस. एक्चुअली में इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा बताओ मुझे. That's the question now. Come on. I really hope all of you are aware of the answer, right? The correct answer would be option number C, of course. ठीक है. अब क्यों ऐसा मैंने बोला, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड के थ्रू ही जाता है लंग्स में. देखो बट मैंने बताया जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में 3 तरीके से ट्रैवल करता है. देखो 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा, 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व होके, 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है, 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व होके, ठीक है. और अगर फिर मैं बात करूँ 20 से 25%, 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व होके, 20% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके इन द फॉर्म ऑफ HbCO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में. और जो मेजर लाइक 70% होता है, 70% द मेजर चंक, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. थी बाइकार्बोनेट आयन ऑल्दो बनती आरबीसीज में है, ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये बनती आरबीसीज में है. बट फिर क्या होता है, ये एक बार बाइकार्बोनेट आयन बना के बाइकार्बोनेट बनती कैसे, इन केस यू नीड दैट एक्सप्लेनेशन. CO2 एक्चुअली क्या होता है, CO2 एंटर करता है आरबीसीज में. आरबीसीज में वो आरबीसीज में ऑफकोर्स साइटोप्लाज्म में वाटर होता है, तो आरबीसीज में ये वाटर के साथ कंबाइन करके बनाता है समथिंग कॉल्ड एज H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना लेता है. और ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू H+ एंड HCO3-, H+ एंड HCO3-. तो ये बाइकार्बोनेट आयंस बन गई. अभी बाइकार्बोनेट आयंस बनी तो आरबीसीज में, बट ये फिर आरबीसीज से बाहर चली जाती है, दे मूव आउट ऑफ द आरबीसीज इनटू द प्लाज्मा, और प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, राइट. सो मेजॉरिटी लाइक द मेजर चंक, ठीक है, इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू लंग्स, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर C बिकम्स द करेक्ट आंसर हियर, एंड नाउ यू नो व्हाई. ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, एंड नाउ यू विल बी वेल वर्स्ड विद द वैल्यूज एज वेल. क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है ब्लड कैरीज द CO2 इन 3 फॉर्म. ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को 3 फॉर्म्स में कैरी करता है. करेक्ट परसेंटेज क्या है CO2 की इन दीज फॉर्म? A एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, B एज बाइकार्बोनेट, C डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा. ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 20 से 25% जो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रैवल करता है. जस्ट सेड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कितने परसेंट? 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस और 7% डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. दीज आर वैल्यूज व्हिच आर स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी, गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल. ठीक है, सो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रैवल करता है 20 से 25%, 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस और 7% CO2 इज डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज एन इंटरेस्टिंग वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है. क्वेश्चन नंबर 56 बच्चे क्या बोलता है, बल्क ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू आरबीसीज वेयर इट जॉइंस लूजली विद Fe2+ आयंस ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म अ ब्राइट रेड ऑक्सीहीमोग्लोबिन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज A ऑक्सीडेशन, B ऑक्सीजनेशन, C हाइड्रेशन और D डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रोजनेशन, व्हाट डू यू थिंक? और ऑप्शन नंबर D डिहाइड्रोजनेशन, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, बल्क ऑफ ऑक्सीजन, एक अच्छा खासा पोर्शन जो है ऑक्सीजन का वो डिफ्यूज कर जाता है फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द आरबीसीज. ओके, देखो अब देखो व्हाट इज द क्वेश्चन से. क्वेश्चन बोलता है बल्क ऑफ ऑक्सीजन, एक अच्छा खासा पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, पहले तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन पहले तो हम भर कहाँ रहे हैं, ऑक्सीजन को भर तो हम प्लाज्मा में ही रहे हैं. ठीक है, बट प्लाज्मा में हम सबको पता है आरबीसीज भी प्रेजेंट है. तो बल्क ऑफ ऑक्सीजन अच्छा खासा, कितना बल्क, यानी 97% की मैं बात कर रही हूँ. 97% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा से डिफ्यूज होकर किस में चला जाता है, इसमें चला जाता है आरबीसीज में. आरबीसीज में क्या करता है, आरबीसीज में जाके वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है. और हीमोग्लोबिन के भी किस पार्ट से, हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से, यानी Fe2+ आयन से बाइंड करता है ऑफ हीमोग्लोबिन, और उनसे बाइंड करके एक बहुत ब्राइट रेड कलर का कंपाउंड बनाता है विच इज HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन. एक्चुअली में जो ऑक्सीजनेशन है वो यही है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन भी किसके साथ, हीम पार्ट के साथ. हीम पार्ट में क्या होता है, आयरन इन दी Fe2+ स्टेट. आयरन जो है Fe2+ स्टेट में, ठीक है, फेरस स्टेट में प्रेजेंट होता है आयरन. ठीक है, तो दिस इज रेफर टू एज ऑक्सीजनेशन. इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन बोल सकते हैं, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ ही तो ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. तो ऑप्शन नंबर B becomes the correct answer here. I hope this is crystal clear to everybody. We move on to the next question, which is question number 57. Okay, now let's quickly discuss question number 57. बच्चे question number 57 बोलता है how many molecules of oxygen does one hemoglobin carry?
कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कैरी करता है, A4, B2, C6 और D8, व्हाट डू यू थिंक बच्चे? तो हम सबको पता है, इन केस फॉर पीपल हु डोंट नो, हम सबको पता है हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर का एक रफ आइडिया, ठीक है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का अगर मैं एक रफ आइडिया दूं तो स्ट्रक्चर लुक समवट लाइक दिस, ठीक है बच्चे। सो देखो एक मिनट, इफ आई कुड टेल यू, देखो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर लुक समवट लाइक दिस, ठीक है। हीमोग्लोबिन में एक्चुअली मैं बात करूँ तो देखो हमारे पास दो अल्फा चेन्स होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, और हमारे पास दो बीटा चेन्स होते हैं, बीटा 1 बीटा 2। इसमें आपको येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द हीम ग्रुप्स, राइट। तो बेसिकली अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में जैसे कि आपने देखा, आपको क्लियरली दिख रहा है 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट है, और जस्ट अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो ऑक्सीजन है इट एक्चुअली बाइंड्स टू द हीम पार्ट, एफ, ठीक है, हीम पार्ट पे बाइंड करता है, आयरन वाले पार्ट पे बाइंड करता है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो एक हीमोग्लोबिन में अगर 4 हीम ग्रुप्स हैं, ठीक है, यानी 4 Fe2+ आयन्स हैं, अगर 4 Fe2+ आयन्स यानी 4 हीम ग्रुप हैं, ठीक है, और एक हीम ग्रुप अगर एक आयन को कैरी, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, तो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कैन बाइंड टू दिस वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो अब ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डज वन हीमोग्लोबिन कैरी? तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। So option number A becomes the correct answer here. I hope this is crystal clear to everybody. Is it? We now move on to the next question, which is question number 58.